Assalamu alaikum and welcome back to Azad Stadium Khrew. Today's all-important cricket match. Sultan Warriors Baramulla locking horns with Pulwama Gymkhana. The two big teams. It's a blockbuster water match and we can't get better than this, where we are having all the northern lines taking on the southern tigers here at the center of Azad Stadium Khrew. And it's time to greet you with the greatest of all greetings. Greeting of Islam. Assalamu alaikum wa rahmatullah. And the toss won by Pulwama Gymkhana and their captain straight away decided to bat first against the likes of Sultan Warriors. Bright sunshine out here at the center, lush green outfield and mesmerizing and picturesque scenes around the park. Beautified center available for cricketing here at Azad Stadium Khrew. And we're just a while away from the start of this all-important cricket match. Jangir Ahmed, thank you. Asif Raja, then Rail Shabir. Each one of you, thank you for tuning into the live broadcast. Join us in numbers and catch the action at your doorsteps today. From the sets of Jigger Sports Time, Rail Shabir and Sheikh NDS Wrightson. Walaikum salam, brother. And walaikum salam to entire fan base of Jigger Sports Time. And out come the Sultan Warriors side. They're going to be in a hurdle for a while, but then we're just waiting for the two openers, and once they will make their way out to the center, it will be interesting to see what kind of batsmanship they will be displaying today here at the center of Azad Stadium. But on one side it is Sultans from Baramulla area, they're getting ready, and then we can see that Pulwama Gymkhana on the other side. Two packed sides, two terrific teams. And if we go through Sultan Warriors, they got the likes of Nasir Bali, they got Jangir Lon, they got Adil Rishi in the lineup, they got Ishtiyaq Rasool, and you can understand big names of the valley playing for that side. And if we look at the Pulwama Gymkhana, they got the likes of Shabir Lepti in the lineup, they got Tajammul Baba, and you can understand how big Tajammul Baba a player he is. He is quite a player. And Adil Guldan is also playing for Pulwama Gymkhana. Bright sunshine, wonderful pictures, nice build up, crowd to the stadium to witness this all important cricket match. Now get my colleague to next to me in the comm box, Mr. Sheikh Nazir in Hindi. Nazir, your comments about this very match. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्वागत सभी व्यूअर्स का आजाद स्टेडियम क्रू से सीधा प्रसारण जेके स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से लेकर के आपकी सेवा में उपस्थित तारीख का बड़ा निर्णायक मुकाबला जो कि सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला और पुलवामा जिमखाना के विरुद्ध होने जा रहा है। हालांकि शुरुआती क्षण है इस मुकाबले के, दोनों अंपायर अपने स्थान पर पहुंच चुके हैं और ऐसे जोड़ी पुलवामा जिमखाना की ओर से धीरे धीरे से उनका आमंत्रण होता हुआ विकेट पे, और ऐसे में एक बड़े मुकाबले की आशंका। निश्चित तौर पे अपने व्यूअर्स से निवेदन होगा कि ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें। आप डिजिटल स्टार्स के जरिए भी आप सम्मानित कर सकते हैं। एक बड़ा मुकाबला, निर्णायक कांटे की टक्कर जो इस समय बीच मैदान में होने जा रही है। शुरुआत और प्रारंभिक जोड़ी इस समय बीच मैदान में, तो कहीं ना कहीं एक संघर्षपूर्ण मुकाबला। और स्वागत करना चाहेंगे अपने व्यूअर्स का जो कि इस समय लगातार जेके स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से हमारे साथ बने हुए हैं। शाहिद भट्ट आमिर, शहजाद राथर और सजाद गुल के साथ साहिल मंजूर और इनायत खांडे भी इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं। धन्यवाद सभी व्यूअर्स का। प्रारंभिक जोड़ी बीच मैदान में पहुंच चुकी है और ऐसे में प्रतीक्षा की जा रही है कि क्षेत्र रक्षण टीम यानी कि सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला की टीम अपने अपने स्थान पर पहुंचे क्षेत्र रक्षण करने के लिए। और एक बड़ा मुकाबला जो इसमें बीच मैदान में शुरू होने जा रहा है। काफी लंबे समय से प्रतीक्षा थी, क्रिकेट के समर्थक, दीवाने और प्रेमी इस मुकाबले की प्रतीक्षा में थे। अंततः प्रतीक्षाएं समाप्त होती हुई और निश्चित तौर पे आजाद स्टेडियम क्रू इस मुकाबले का नेतृत्व करने जा रहा है। एक बड़ा निर्णायक मुकाबला जो समय बीच मैदान में शुरू होने जा रहा है। शुरुआती क्षण मैदान पे दोनों अंपायर, प्रारंभिक जोड़ी और धीरे धीरे से अब सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला के क्षेत्र रक्षक अपने अपने स्थान पर पहुंचते हैं। अभ्यास होता हुआ और एक अच्छी खासी दर्शकों की संख्या इस मुकाबले का आनंद लेने के लिए इस समय धीरे धीरे से पहुंच रही है मैदान में। तो आशा की जा रही है कि एक बड़ा जन सैलाब देखने को मिलेगा इस मुकाबले की। अगर बात करें, एक बड़ा मुकाबला दोनों छोर से अगर तुलना करें दोनों टीमों की, चाहे पुलवामा जिमखाना की बात हो चाहे सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला की बात हो, तो दिग्गज खिलाड़ी दोनों टीमों में खेलते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं क्रिकेट के समर्थक, चाहने वाले, दीवाने, प्रेमी इस मुकाबले का काफी लंबे समय से प्रतीक्षा में है और निश्चित तौर पर अब प्रतीक्षा
प्रतीक्षाएं समाप्त होती हुई और इस समय मुकाबला शुरू होने जा रहा है। एक आकर्षक विश्वसनीय प्रदर्शन होने जा रहा है। मीर इशफाक साजिद गुल के साथ राजा इकबाल खान और सजाद गुल हमारे साथ बने हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी व्यूअर्स का अपना प्यार और विचार देने के लिए, और इसी प्रकार से बने रहिए हमारे साथ। एक संघर्षपूर्ण मुकाबला होने की आशंका है। हालांकि नासिर गनाई पे नजर दौड़ाई जाए, वे इस मुकाबले में खेल रहे हैं, जहांगीर लोनी इस मुकाबले में खेल रहे हैं, और निश्चित तौर पर अगर दोनों टीमों की तुलना करें, इशनाग इस मुकाबले में खेल रहे हैं, नासिर कुमार मुकाबले में खेल रहे हैं, आदिल रेशी इस मुकाबले में खेल रहे हैं, तो निश्चित तौर पे एक बड़ा मुकाबला अवश्य तौर पर तय है। और ऐसे में कहना चाहिए कि क्रिकेट की भिड़ंत निश्चित तौर पे आज देखने को मिलेगी आजाद स्टेडियम क्रू में। जेके स्पोर्ट्स टाइम क्रिकेट जगत का एक वाहिद ऐसा मंच जो क्रिकेट के हर क्षेत्र से सीधा प्रसारण लेकर के अपने चाहते व्यूअर्स तक पहुंचता हुआ, और आज भी निश्चित तौर पे एक बड़े मुकाबले को लेकर के आपकी सेवा में उपस्थित इरफान अहमद वार हमारे साथ बने हुए हैं, और उसके बाद आमिर शहजाद भी सईद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। और निश्चित तौर पे बहुत जल्द आप तक प्लेइंग 11 पहुंचा दी जाएगी। एक बड़ा मुकाबला इस समय बीच मैदान में प्रारंभ होने जा रहा है। सुल्तान वॉरियर्स बारामूला और पुलवामा जिमखाना के दो कश्मीर की बड़ी दिग्गज टीमें इस मुकाबले में आपस में भिड़ंत ज़ुहूर जोलो इस मुकाबले में खेल रहे हैं। और निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं अगर इस मुकाबले की बात करें, एक बड़ा निर्णायक मुकाबला। मलिक जफर कमाल और खान बिलाल भी हमारे साथ बने हुए। असद भट्ट बहुत बहुत धन्यवाद अपना प्यार और विचार देने के लिए। जफर का कमाल के साथ फयाज गनाई भी, रवि रईस इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं, और लोन महराज के साथ वाजिद भट्ट भी हमारे साथ बने हुए हैं। धन्यवाद सभी व्यूअर्स का अपना प्यार विचार और समर्थन देने के लिए। और निश्चित तौर पे एक बड़ा मुकाबला आज देखने को मिलेगा। वातावरण कमाल का, क्रिकेट के अनुकूल, मैदान खूबसूरत सजा हुआ इस मुकाबले का। ख्रू प्रीमियर लीग सत्र 2022 वर्ष के अनुकूल एक सफल आयोजन इस प्रतियोगिता का, धीरे धीरे से अंतिम चरण की ओर इस समय बीच मैदान में आदिल की अगर बात करें, वो इस मुकाबले में खेल रहे हैं, आदिल दादा। तो कहीं ना कहीं एक सितारों से सजी हुई ये दिग्गज टीम सुल्तान वॉरियर्स बारामूला। और वहीं पे अगर पुलवामा जिमखाना की बात करें तो निश्चित तौर पे कहना चाहिए कि एक दिग्गज खिलाड़ी अगर पुलवामा जिमखाना की बात करें, वहां पे उस ओर से भी खेल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। नासिर गनाई, इशनाग कहना चाहिए, वो भी इस मुकाबले में खेल रहे हैं। तो एक निर्णायक कांटे की टक्कर का मुकाबला। और निश्चित तौर पर जिस प्रकार से देखा गया है, इशनाग के हाथ में है गेंद, सबसे वो गेंदबाजी प्रारंभ करेंगे सुल्तान वॉरियर्स बारामूला की ओर से, और प्रारंभिक जोड़ी पुलवामा जिमखाना की ओर से पहुंच चुके हैं। तो शुरुआत होने जा रही है, और देखना है इन परिस्थितियों में किस प्रकार से वे यहां से बल्लेबाजी करेंगे। शुरुआती क्षणों में क्या प्रदर्शन होगा, क्या आकर्षक स्तंभ होंगे, शुरुआती रणनीति क्या होगी, ये देखने वाली बात है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा मुकाबला। वामिक इकबाल, सजाद गुल और इरशाद अली भी हमारे साथ बने हुए हैं खान आमिर के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद सभी व्यूअर्स का अपना प्यार विचार देने के लिए। जुड़ जाइए हमारे साथ। एक संघर्षपूर्ण मुकाबला, और क्रिकेट के भाषा में कहे तो क्रिकेट का महासंग्राम इस समय बीच मैदान में प्रारंभ होने जा रहा है सुल्तान वॉरियर्स बारामूला और पुलवामा जिमखाना के विरुद्ध। प्रारंभिक जोड़ी बीच मैदान में, और देखना है गेंदबाजी का प्रारंभ किसे दिया जाता है। गेंदबाजी का मोर्चा निश्चित तौर पे इशनाग, और जी हाँ बिल्कुल गेंदबाजी का प्रारंभ करेंगे इशनाग, और सामने रहेंगे बल्लेबाज। हालांकि दोनों बल्लेबाज इस समय बीच मैदान में पहुंच चुके हैं, और देखना है प्रारंभिक जोड़ी के रूप में किस बल्लेबाज को भेजा गया है, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। शुरुआती क्षणों में ठोस शुरुआत देनी होगी। शुरुआती क्षणों में एक मनोबल, अपने आप को संतुलित रखना होगा, विकेट के मजाज को परखना होगा, और उसके बाद 10 स्ट्रोक्स खेलने होंगे। एक अच्छी साझेदारी की आवश्यकता है शुरुआती क्षणों में। ये देखते हुए कि पुलवामा जिमखाना की अगर बात करें, दिग्गज बल्लेबाज उनके पास, ऑलराउंडर्स की बात करें तो उनकी भरमार। और ये देखते हुए अगर बारामूला सुल्तान वॉरियर्स बारामूला की बात की जाए तो एक से बढ़कर एक खिलाड़ी उनकी टीम में खेल रहे हैं। कहीं ना कहीं ये ध्यान में रखना होगा पुलवामा जिमखाना की टीम को, और एक विशाल लक्ष्य देना होगा इस मैदान में, तब जाकर के वो एक बड़े लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। फिलहाल इशनाक तैयारी करते हुए, फील्ड प्लेसमेंट में थोड़ा सा परिवर्तन किया जा रहा है, फील्ड सजाई जा रही है। ये देखते हुए शुरुआती क्षण है मुकाबले के, और एक बेहतरीन विश्वसनीय मुकाबला बीच मैदान में। दर्शक धीरे धीरे से इस मैदान के अंदर अपने अपने स्थान पर पहुंचते हुए, और एक बड़ी संख्या में दर्शकों के आने की आशंका है। क्रिकेट के समर्थक दीवाने काफी लंबे समय से प्रतीक्षा में थे, और अंततः प्रतीक्षाएं समाप्त, मुकाबला शुरू होने जा रहा है सुल्तान वॉरियर्स बारामूला और पुलवामा जिमखाना के विरुद्ध। जिमखाना की टीम पहले बल्लेबाजी करने के
के लिए समय बीच मैदान में प्रारंभिक जोड़ी पहुंच चुकी है। इशनाक गेंदबाजी का प्रारंभ करेंगे और देखना है किस प्रकार से क्या रणनीति रहेगी नाग की। शुरुआती क्षणों में किस प्रकार से आक्रमण करेंगे पुलवामा जिमखाना के। पहले ओवर की पहली गेंद नाग लेकर के फुल टॉस घुमाया उसको, दो खिलाड़ियों के बीच में से गेंद सीमा रेखा से बाहर, ये लगा जस्ट मुखारा चौका। तो शुरुआत चौके से स्वागत नाग का किया वहां पर बल्लेबाज ने और इस चौके के साथ स्कोर बढ़ता हुआ पुलवामा जिमखाना का 4, खाता खुला टीम का बगैर नुकसान के। शुरुआती क्षण है और ऐसे में कहीं ना कहीं कहना चाहिए एक बड़ा मुकाबला देखने की आशंका। क्रिकेट के समर्थक और दीवाने इसी मुद्रा में बैठे हुए इस मुकाबले का आनंद लेते हैं। इशनाक है सामने, दूसरी गेंद लेकर के तैयार। इस ओवर में राइट आर्म ओवर द विकेट गेंद करेंगे। इस बार फिर जगह मिली, संतुलित हवाई रास्ता, गेंद पिछली गेंद की पुनरावृत्ति सीमा रेखा से बाहर, ये लगा एक और जस्ट मुखारा चौका। तो 2 गेंदों से 2 चौके, शुरुआत तेज तरार, इरादे स्पष्ट कर दिए वहां पर बल्लेबाज ने। इन 2 चौकों के साथ स्कोर 8 और पुलवामा जिमखाना की ओर से अगर बात करें आदिल गुलडान और तजम्मुल बाबा कर इस पर पहुंच चुके हैं। 2 दिग्गज बल्लेबाज बीच मैदान में और ताबड़तोड़ शुरुआत, इरादे स्पष्ट। और इन परिस्थितियों में किस प्रकार से नाग गेंदबाजी करेंगे, एक निश्चित तौर पर चुनौतीपूर्ण मुकाबला बीच मैदान में चलता हुआ। पुलवामा जिमखाना 8, 2 गेंदें हो चुकी हैं पहले ओवर की। नाग चले राइट आर्म ओवर द विकेट, इस बार उछाल लेती है ऑफिस से बाहर और उपेक्षा से ज्यादा, लेकिन अंपायर ने उसको वाइड करार दे दिया। 1 रन और खाते में जुड़ता हुआ पुलवामा जिमखाना 11-9 पे पहुंच चुका है। क्षमा कीजिएगा 9 रन। आदिल गुलडान 8, 2 गेंदों से 2 चौके अब तक जड़ चुके हैं। एक तेज तरार और विस्फोटक शुरुआत और निश्चित तौर पे मुनव्वर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आमतौर पर तेज खेलना पसंद करते हैं, विस्फोटक पारी खेलते हैं, लेकिन आज थोड़ा सा संयम रखना होगा शुरुआती क्षणों में मुनव्वर। Of course, big match and Guldan has to live up to his expectations. Wow, look at that one outside edge. But go one lucky on that occasion. It flies with a slip cotton down to the boundary, and that ball brought to you by just Bukhara. But Nazir, that was a Weber shot. But and he tried his level best, throwing bat at it, throwing kitchen sink at it. But that wasn't a wicket-taking ball. Nonetheless, he gets away with it, and that ball takes the score to 13 into the double figures for the loss of no wicket. Well, you were talking about that they need to put premium on the wickets. This is how things can unfold. Things should be unfolding here at the center. They should put premium on the wickets, stuck to the basics and wait for the bad balls. मनवर एक बात और, यहाँ पर इशनाक जो है कंधे का इस्तेमाल कर रहे हैं, पटकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन रफ्तार उनके पास निश्चित तौर पे है। लेकिन आदिल गुलडान की रुख किस प्रकार से करेंगे गेंदबाजी देखने वाली बात करा रहा है। 100 ऑफ स्टंप पर आते हुए गेंद पीछे खिलाड़ी, लेकिन गेंद कारपेट के सहारे लड़कते हुए सीमा रेखा से बाहर, ये लगा जस्ट मुखारा चौका और तीसरा चौका इस ओवर से। निश्चित तौर पे संभवतः चौथा चौका कुल मिलाकर और 17 पे जा पहुंचा है मात्र पहले ओवर में। आदिल गुलडान 16 पे नाबाद 4 गेंदों से। तजम्मुल बाबा को भी अपना खाता खोलना है, तो यह दर्शाता है एक तेज तरह शुरुआत और निश्चित तौर पे शायद यहाँ पे शुरुआती क्षणों में एक दबाव बनाने की कोशिश बल्लेबाज द्वारा इशनाक पे। ये गेंद नाग के फुल टॉस तो कहने लगा अंपायर के बाएं और गेंद सीमा रेखा से बाहर। एक और जस्ट मुखारा चौका, 5वां चौका ओवर में, 21 पे जा पहुंचा दिया पहले ओवर में। आदिल गुलडान इस समय कुल मिलाकर 20 पे और 21 रन बगैर नुकसान के मात्र पहला ओवर प्रगति पर। And can you believe it's 21 and he's yet to bowl, he's yet to complete his over, and can you believe this has been absolute carnage here at the center. 21 of just 5 balls with help of 5 boundaries and a poultry run. Oh, look at that run, will this go down to the boundary? That's gone, 1 bounce and into the fire leg for 6 balls in an over. Nazir, can you believe 25 of an over? Carnage, unleashing the terror with the bat. It is Adil Guldan completely unleashed here at Azad Stadium, Khrew. लगातार 6 चौके ओवर से और निश्चित तौर पे ये इतिहास रचा है इस आजाद स्टेडियम ख्रू में और मैं समझता हूं शायद ऐतिहासिक क्षण होंगे। और इतिहास में अगर इस प्रतियोगिता की बात करें ख्रू प्रीमियर लीग की, तो पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ कि 1 ओवर में 6 चौके और 1 वाइड, 25 रन पहले ओवर में। आदिल गुलडान और तजम्मुल बाबा, लेकिन तजम्मुल बाबा पहली बार सामना करने के लिए तैयार। एक बार फिर अपने सभी व्यूअर्स का धन्यवाद करना चाहेंगे अपना समर्थन सहयोग देने के लिए। एक बड़ा मुकाबला है, शुरुआती क्षण है आदिल गुलडान और तजम्मुल बाबा की जोड़ी बीच मैदान में। प्रहार शुरुआती क्षणों से और निश्चित तौर पर दबाव बनाने की कोशिश और अब तक सफलता भी मिली है आदिल गुलडान को। Adil Guldan and Tajammul Baba out to the center of Khrew, and the very first ever absolute carnage, all guns blazing inning unfolding here at the center. And but Basid writes in something, thank you, it's 25 and encore 50 of an hour, and you can understand how
they are going up to the bowlers and under the serious pump, and this has been a tremendous batting display by the two batters out in the middle. 25 for none in over number 2. Ball 1 coming up in over number 2. Umar is going to bowl, and on strike will be Tajammul Baba. But Nazir, at this crucial juncture, it's better for Tajammul Baba to rotate strike and give strike back to this man Adil Guldan. He's seizing the initiative in style. जी बिल्कुल प्रहार कर रहे हैं शुरुआती क्षणों में, हालांकि नॉन स्ट्राइकिंग छोर पे खड़े हैं आदिल गुल्टान 99 नंबर की जर्सी पहने हुए, और ऐसे में अगर तजम्मुल बाबा की बात करें तो काले रंग का हेलमेट, और इस समय सामना करने के लिए तैयार। दूसरा ओवर गेंदबाजी का, और देखना है किस प्रकार से यहां से गेंदबाजी होगी। उमर जो है प्रारंभ करेंगे आज गेंदबाजी में नाग के साथ। नाग का पहला ओवर काफी खर्चीला। तजम्मुल बाबा उमर के सामने पहले गेंद, करारा प्रहार, गेंद सीमा रेखा से बाहर, नो का इशारा अंपायर द्वारा ये लगा। जस मुखारा चौका, 5 रन खाते में, और 30 निश्चित तौर पे 29 पे जा पहुंचा दिया। एक ओवर पूरा हो चुका है। दूसरे ओवर की पहली गेंद पर प्रहार, पहले ओवर में आदिल गुल्डान, और इस बार रंग पकड़ते हुए तजम्मुल बाबा। 9 बॉल के साथ ही कुल मिलाकर 30 रन बन चुके हैं दूसरे ओवर में बगैर नुकसान के। तेज तरार विस्फोटक शुरुआत पुलवामा जिमखाना, और निश्चित तौर पे वे जानते हैं कि बारामुल्ला सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला के विरुद्ध खेलना है, तो ऐसे में दिग्गज जोड़ी होगी सामने जब वे दूसरी पारी में बल्लेबाजी करेंगे। उमर चले, इस बार गति में परिवर्तन, हवाई फायर, गेंद सीमा रेखा से बाहर, ये लगा जस मुखारा चौका, और इस समय आग उगल रहा है तजम्मुल बाबा का बल्ला। समझ नहीं पा रहे हैं उमर कि किस और गेंदबाजी की जाए, और इस समय रनों के बरसात होती हुई 34 रन 1.1 ओवर के बाद। आदिल गुल्डान 24 6 गेंदों से, तजम्मुल बाबा 8 2 गेंदों से, ये है लेखा जोखा। Interesting thing, all the balls were put away in style, and so far 7 balls sent down and 7 fours coming, and 8 balls to be precise. It was a no ball, and that means 8 balls were bowled and 8 fours coming of 8 balls. Have you ever heard on a cricketing field it has happened? I think it's for the first time. It's history in making, and credit goes to Tajammul Baba and his colleague Adil Guldan. They're on fire here, all guns blazing, going downtown and this stand. Some stylish and proper cricketing strokes were witnessed by our colleagues on JK Sports Time this afternoon, and it's been absolute carnage with the bat. Next ball from Umar. Umar goes and bowls to Tajammul, and Tajammul Baba, your beauty, it's into the orbit, Nazir, and we lost the ball, and that's X brought to you by Just Bukhara, but this has been the biggest of the lot, and Sultan Warriors Baramulla are unable to understand what to do and how to keep the batters under check, and this one into the orbit, and this has gone way away from the center, miles away from the center to be precise, Nazir. अजय बिल्कुल समझ नहीं पा रहे हैं गेंदबाज उमर कि किस प्रकार से गेंदबाजी की जाए। हालांकि चिंता के लकीरें इस समय माथे पर देखी जा सकती है सभी क्षेत्रों पे। शुरुआती क्षण है और एक ताबड़तोड़ बल्लेबाजी पहले ओवर में आदिल गुल्डान, और इस बार तजम्मुल बाबा प्रयास करते हुए, और जबरदस्त प्रहार में अभी तक सफलता जरूर मिली है। अब तक अगर 9 गेंदों की बात करें, 9 गेंदों में 8 चौके और 1 छक्का अब तक जड़ चुके हैं। 40 रन स्कोरबोर्ड पे मात्र 1.2 ओवर की गेंदबाजी के बाद। And if we look at the faces of Sultan Warriors Baramulla, worrisome faces out here at the center, and if you look at their faces, drooping shoulders at this crucial juncture, because all the bowlers taken to the cleaners, they're under the serious hammer and punch here at the center of Azad Stadium Crew. But credit goes to Tajammul Baba and Adil Guldan. Now Tajammul Baba is changing its colors. He is trying to turn the table, and he has turned the tide. He's sideways in style. Now Jack comes across and giving back talk to bowler. What are you doing? Why are you making the mockery of the cricket ball? And you're being put away in style. Next ball, swing and a miss. This is the very first dot ball. It's precious like gold, but this has been the very first dot ball. Have you ever heard that 8 balls on a roll going out of the park on a trot, but all of a sudden he produced a dot ball, which means gold dust. देखिए शुरुआती क्षणों में एक सटीक लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी करनी होगी, एक प्रभावशाली गेंदबाजी, फील्ड अनुशासित गेंदबाजी यदि कुछ प्रभाव छोड़ना चाहते हैं। लेकिन जिस प्रकार से इरादे स्पष्ट कर दिए हैं तजम्मुल बाबा और आदिल गुल्डान ने, और निश्चित तौर पर एक बड़े लक्ष्य की ओर अग्रसर, और कहना चाहिए कि इन परिस्थितियों में कड़ी चुनौती होगी गेंदबाज उमर के लिए। चले तजम्मुल बाबा के लिए उनकी गेंद, अच्छी गेंद, पिछली गेंद की 15 मिनट टिप्पा खाने के बाद सीधी स्पॉट मिडल स्टंप के क्षेत्र में, और गेंद सीधे विराम करते विकेट कीपर वसीम काचरू के दस्ताने में। रनों की गति में कोई वृद्धि
फिनिश 40 रन 1.42 गेंदें डॉट हुई है। अगर इस ओवर की बात करें, अच्छी खासी रफ्तार है उमर के पास, लेकिन दिशा और लंबाई में नियंत्रण करना होगा उमर को यदि शुरुआती क्षणों में कुछ प्रभावशाली गेंदबाजी करना चाहते हैं तजम्मुल बाबा के विरुद्ध। Well, he needs to bowl in that corridor of uncertainty and maintain some discipline. Next ball goes and bows to Tajammul. Oh, beauty! Nasty one, hitting him on the arm there, but I think he seems to be okay. No harm done. Score remains 40 for none at this crucial juncture. Warriors need a wicket, and Tajammul Baba would definitely love to carry on. He's on a roll here. He's on a roller coaster ride, and he's having a wonderful time with the bat at the center of Azad Stadium, Khrew, and he is trying to prosper with every passing ball. But in this over, to some extent, Umar bowled tight line and length, and credit goes to the lawn. He came across and given him a pep talk. But you're a young buddy, need to bowl in the right areas. Next ball, 40 for none, goes and bows to Baba, and Baba gets that one through the offside. That ball brought to you by Just Bukhara for number 10. It's 44 after 2 overs. Can you believe scoring at the rate of 22 and over? And this has been absolute carnage. Credit goes to Tajammul Baba and Adil Guldan. Both the batters coming out, all guns blazing, and all the bowlers from Sultan Warriors so far. 2 bowlers being used at Ishtiaq Rasool and Umar, both taken to the cleaners. Now captain is under the serious hammer and pump. Now he brought on a change, and he has brought about a change. It's going to be Nasir Bali to operate in over number 3. 44 for none. They need a wicket here to dent to the confidence of Pulwama Gymkhana, but Gymkhana are displaying that Gymkhana style. They're going up to the bowlers and they're not telling them to settle down quite a bit. अजय बिल्कुल, और यहाँ पर तीसरे गेंदबाज को आजमाया जा रहा है। एक परिवर्तन वहां पर देखने को मिल रहा है। हालांकि पहले ओवर में इशनाक खर्चीले साबित हुए, दूसरे ओवर में उमर ने भी हालांकि आखिरी की 2-4 गेंदें बेहतरीन की, लेकिन बेहतरीन तरीके से प्रहार किया। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार से आवश्यकता थी परिवर्तन की। देखना है ये परिवर्तन रंग लाएगा अथवा नहीं। नासिर गनाई के हाथ में थमा दी है गेंद कप्तान ने। अगर सुल्तान वॉरियर्स बारामूला की बात करें, देखना है उनके पास गति अच्छी खासी है, लेकिन इन परिस्थितियों में किस प्रकार से वे गेंदबाजी करेंगे। सामने रहेंगे आदिल गुलडान, एक दिग्गज खिलाड़ी, और ऐसे में गुलडान के विरुद्ध किस प्रकार से बल्लेबाजी करेंगे। हालांकि तजम्मुल बाबा और आदिल गुलडान बीच मैदान में इसमें कुछ मंत्रा करते हुए एक दूसरे से बातचीत करने के बाद अपने अपने स्थान पर लौटते हुए 2 ओवर पूरे 44। आदिल गुलडान 24 6 गेंदों से, तजम्मुल बाबा 18 7 गेंदों से। नासिर गनाई तीसरे गेंदबाज के रूप में सुल्तान वॉरियर्स बारामूला की ओर से गेंदबाजी का मोर्चा संभाले हुए। पहली गेंद लेकर के तैयार, सामने रहेंगे आदिल गुलडान, उनके लिए नासिर गनाई पहली गेंद और 5 गेंद लेके संपार निकाला, उसको पीछे जा रहे हैं विकेट कीपर, लेकिन बैकअप कर रहे थे खिलाड़ी। 1 रन पूरा किया, दूसरे रन के लिए जाना चाहेंगे। निश्चित तौर पे वहां पर मिसफील्ड का नतीजा, जहां पे 1 ही रन होना चाहिए था, वहां पे 2 रन मिलते हुए। 2 रन और 2.1 ओवर की गेंदबाजी 46 बगैर नुकसान के। ये है लेखा जोखा अब तक का इस मुकाबले का। पुलवामा जिमखाना की टीम पहले बल्लेबाजी करते हैं आदिल गुलडान और तजम्मुल बाबा, दिग्गज जोड़ी इस समय बीच मैदान में प्रयास कर रही है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से विस्फोटक और कहना चाहिए एक आकर्षक शुरुआत देखने को मिली है शुरुआती क्षण में पुलवामा जिमखाना की ओर से। इम्तियाज सलाम, बहुत बहुत धन्यवाद। याकूब भी हमारे साथ बने हुए हैं, अपना प्यार और विचार देने के लिए धन्यवाद। नासिर गनाई चले राइट आर्म, गुलडान के लिए इस बार लेग स्टंप पर थोड़ी सी हवाई जरूर यात्रा दी थी गेंद को, लेकिन पीछे खिलाड़ी थे, चहलकदमी करते 1 रन और खाते में जोड़ता हुआ 47 पे जा पहुंचा दिया पुलवामा जिमखाना का कुल योग। 2.2 ओवर की गेंदबाजी के बाद गुलडान 25 8 गेंदों से और तजम्मुल बाबा सामना करने के लिए तैयार 18 पे नाबाद 7 गेंदों से। कहीं ना कहीं एक तेज तरार शुरुआत, लगातार बातचीत जहांगीर लोन और नासिर गनाई द्वारा। ये देखते हैं कि किस प्रकार से आप गेंदबाजी करेंगे। शुरुआती क्षण है, एक विकेट की आवश्यकता है, और ऐसे में क्या उसमें सक्षम हो पाते हैं नासिर गनाई अथवा नहीं, देखने वाली बात होगी। कड़ी चुनौती होगी इस समय गेंदबाज के लिए अगर बात करें प्रारंभिक बल्लेबाजों के पुलवामा जिमखाना की ओर से। 47 for none after 2.2 balls. Nasir Bali is operating. If we look at the field on offside, there is no slip at all. Third man backward, a point, cover point, short extra cover mid off. Onto the onside, short mid on, short mid wicket, and a mid wicket and a short backward scalag is in place. 47 for none. With this field, Nasir Bali is going to operate. On strike will be Tajammul Baba. He's on to 18 of 7 balls. And Adil Guldan is on to quarter 50 of 8 balls. Here goes Nasir Bali again. And pulling that one in between, short mid
mid-wicket and long on down to the boundary, brought to you by Just Bukhara. Another 450 comes up in over number 3. We are halfway down into the third over. It's 51 for none. Pulwama Gymkhana, and these two batters, they are jam-upper batters out in the middle, and the way they are displaying their character, all copybook, proper cricketing strokes. It takes tremendous character to play. They are displaying that determination, dedication with the bat. 51 for none, and all balls were put away in style. 51, and Bali now under the serious hammer and pressure. Punch at this crucial juncture, but on the other hand, Tajammul Baba continues to prosper onto 22 of just 8 balls. He's yet to face a double number of balls, and in double figures he's just faced in single digit. He has faced only 8 balls for his 22, and his colleague on the other hand, he's on to 25, just 8 balls. And we'll have to wait and watch. In between, Nasir Belly gets ready to bowl the next one. 51 for none. Pulwama Gymkhana, after winning the toss, batting first, goes and bowls, flies up the top edge. Another throw brought to you by Just Bukhara, but you can't do very much. You bowl in that corridor of uncertainty, and batsman slaps that when it finds the top edge and carries down to the third man for 4. Score moves on to 55 for none. Nazir, absolute carnage. Both the batters are not going to hold themselves back. They're going to go after the Pacers, and how the Pacers can produce that beauty to knock them over. जी बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूं, और इस समय कहना चाहिए क्रिकेट की भाषा की बात करें तो कहर बरसा रहे दोनों बल्लेबाज, चाहे तजम्मुल बाबा हो चाहे आदिल गुल्टान हो, क्योंकि 2.4 ओवर की गेंदबाजी मात्र हुई है। 55 रन स्कोरबोर्ड पे लग चुके हैं, और इससे आप कल्पना कर सकते हैं क्या तेज तरह ताबड़तोड़ बल्लेबाजी दोनों छोर से तजम्मुल बाबा और आदिल गुल्टान द्वारा। पुलवामा जिमखाना 55 पे पहुंच चुके हैं 2.4 ओवर की गेंदबाजी के बाद। नासिर गनई अब तक इस ओवर में अगली बार 4 गेंदें फेंक चुके हैं, 9 रन खर्चे हैं। ये गेंद देकर के तैयार, इस बार करा रहा है गेंद सीमा रेखा से बाहर। हौसले हम भी रखते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं कि आखिरी हद तक आजमाए जाए। तजम्मुल बाबा के बल्ले से जस्ट बुखारा चौका, और 59 पे पहुंचा दिया 2.5 के बाद। That was absolutely marvelous shot, and no need to run for those, and fielders were afraid of stopping that turn. It goes off the turf down to the boundary. 59 after 2.5 balls. Last ball goes and bows. Oh, look at that turn. He very to the pace, but what you have done, wicket keeper, he fumbled it, and ball makes its way to the boundary, and over comes to an end. 63 after 3 overs. This has been carnage, absolutely class from the two batters, but this is something which you won't have expected. These things will happen here at the centre. This is all happening against the rule of cricket. It is 63 after 3 overs for the loss of no wicket. मनवर यहाँ पर देखिए, अगर विकेट कीपर वसीम काचरो की बात करें, विकेट के पीछे एक स्तंभ की तरह खड़े रहते हैं, लेकिन इस समय अगर बात करें कहीं ना कहीं दबाव की स्थिति जरूर, और गेंद उनसे छिटकी निकल गई सीमा रेखा से बाहर। चौका मिला। 63 रन 3 ओवर के समाप्ति के बाद। आदिल गुल्टान 25 गेंदों से, तजम्मुल बाबा 30 11 गेंदों से, और इस समय क्रिकेट के समर्थक का हालांकि अच्छे खासे मुद्रा में यहाँ पर आए हुए हैं, लेकिन वो भी समझ नहीं पा रहे हैं कि बीच मैदान में क्या हो रहा है। और इस समय बीच मैदान में अगर बल्लेबाजी की बात करें, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, और अब तक चारों खाने जीतते समय गेंदबाजी की। एक बार फिर वहां पर इशनाक के हाथ में गेंद थमा दी। वो अपने कोटे का दूसरा कुल मिलाकर पारी का चौथा ओवर फेंकेंगे। 3 ओवर 63 रन। तजम्मुल बाबा आदिल गुल्टान प्रारंभिक जोड़ी पुलवामा जिमखाना की ओर से बेहतरीन, विश्वसनीय, आकर्षक और निर्णायक प्रारंभिक जोड़ी बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं बीच मैदान में, और कहीं ना कहीं यहाँ पर एक विकेट की आवश्यकता है। चिंता की लकीरें देखी जा सकती है माथे पे अगर सुल्तान वॉरियर्स के क्षेत्ररक्षकों की बात करें, क्योंकि चाहते हैं शुरुआती क्षणों में एक विकेट जरूर मिले, लेकिन अभी तक उसमें सफलता नहीं मिली है। इशनाक, नासिर कुमार, जोहर जोलो, जहांगीर लान इस गेंद के बाद चर्चा जारी रखेंगे। आप इस दम से गेंद सीमा रेखा से बाहर, 6 रनों का इशारा। ये लगा जस्ट बुखारा छक्का, और छक्कों और चौकों की बरसात होते हुए आजाद स्टेडियम को गूंजता हुआ, और बीच मैदान में इस समय बरसात रनों की होती हुई पुलवामा जिमखाना के दोनों बल्लेबाजों द्वारा। 3.69 रन लगातार प्रहार हो रहे हैं। गुल्टान है सामने। ये गेंद भारत अच्छी गेंद पूरी तरह से स्टंप्स को कवर करते हैं, खूबसूरत तरीके से रोका, खुद अपने फॉलोथ्रू में फील्ड किया इशनाक ने बगैर किसी रन के। 3.69 रन बगैर नुकसान के। आदिल गुल्टान मात्र 10 गेंदों से 31, तजम्मुल बाबा 11 गेंदों से 30। ये है लेखा जोखा। कल्पना कर सकते हैं इस समय किस बेरहमी के साथ गेंदबाजी के पीछे बल्लेबाज। ये गेंद बस बाहर फिर बढ़िया गेंद, और बैक फुट पर जाकर के उसको खेला। उस और नासिर कुमार है, बेहतरीन गेंद स्टंप पे आती है, रोक लिया नासिर
कुमार ने रन बनने की किसी भी संभावना को समाप्त किया। रनों की गति में कोई वृद्धि नहीं, 3.69 रन। पुलवामा जिमखाना टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हैं। आजाद स्टेडियम क्रू से सीधा प्रसारण जेके स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से आप तक पहुंचता हुआ। नाग चले लेग स्टंप से बाहर, वसीम काचरूबी चौके, गेंद जाएगी सीमा रेखा से बाहर और एक और अतिरिक्त वाइड का इशारा। 5 रन और 74 पे जा पहुंचा। हो क्या रहा है क्रिकेट के समर्थक भी इस मुकाबले की इस शुरुआती स्थिति समझ नहीं रहे हैं। And no one can believe it's been carnage. It's been cricket ball is being marauded, and this has been they're murdering the cricket ball. It's 74 after halfway down into the fourth over. It is 74 for none. Cricket at its best, but this has been something unbelievable happening here at the amazing. Next ball, oh, he wants to play that 10 shot, beaten all ends up, and wicketkeeper collects that one with ease. It's 3.4 ball done and dusted, 74 for none, and Guldan moves on to 31 of 12 balls, and Tajammul Baba is on to 30 of 11 balls. Now Guldan has paced one ball ahead of Tajammul Baba and has scored just a shade over Tajammul Baba, just one run, 31 to him up 12 balls. Here goes again Ishnaaq to, oh, that one, has that gone the distance? Yes, it does the distance. 6 more brought to by just Bukhara, and Guldan carries on with that instinct of killing, and that one goes over long off. 6 more, and with that 6 score propelled to 80 for none after 3.5 balls. We are yet to mark an end to the fourth over. It's 80 on the board. You won't have expected this. This is for the first time happening on a cricketing field. 80 of 3.5 ball. Last ball, and Guldan goes for a cut, misses completely. Wicketkeeper does the rest, and no salvation, no respite for the bowlers. They're under the serious hammer and punch and pump, but the batters are going downtown and distant. Nazir, what to do? They're unable to understand. Pep talk is going on. Who is to give in the ball, and who is to give in the ball, and how to dent to the confidence of the two batters out in the middle, and who is to give in the ball under certain circumstances, because it's absolute carnage. The two batters, destructive pair out in the middle. They are marauding the cricket ball. They are doing their destruction, and it's par excellence. It's been absolute marvelous game of cricket, unbelievable scenes, cricket ball being marauded, and each and every ball is flying out of the park in a distant kind of a manner. हाँ बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। 24 कैरेट खरा सोना है ये खिलाड़ी, और जिस प्रकार से गेंद के पीछे इस समय जा रहे हैं, क्या लाजवाब विश्वसनीय प्रदर्शन। निश्चित तौर पे दर्शकों का जो बेहतरीन तरीके से मनोरंजन होता हुआ आजाद स्टेडियम क्रू से जेके स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से सीधा प्रसारण आप तक पहुंचता हुआ। बने रहिए हमारे साथ, कहीं जाइएगा नहीं, लाइक और शेयर करना ना भूले, ताकि अन्य लोग हमारे साथ इस क्रिकेट के महासंग्राम का आनंद ले सकें। आप डिजिटल स्टार के जरिए भी हमें सम्मानित कर सकते हैं। सेंड स्टार्स के बटन को दबाना ना भूलिएगा, और हम तक का सम्मानजनक रूप से आप पहुंच सकते हैं। इरफान सूफी हमारे साथ, शेख साहिल के साथ, आसिफ भट्ट पे एक और परिवर्तन, और निश्चित तौर पे चौथे गेंदबाज को आजमाया जा रहा है। पहली गेंद लेकर के बाएं हाथ से ये गेंद, और इस बार जगह मिली हल्के लेग स्टंप पर, टिप्पा खाने के बाद ऑफ स्टंप की ओर जानती हुई एक तो हल्का सा मोमेंट जरूर मिला, खेला वहां पर तजम्मुल बाबा ने। गेंद सीधे नासिर कुमार के पास बगैर किसी रन के। 80 रन 4.1 के बाद 37। आदिल गुलडान, तजम्मुल बाबा 30 सामना करने के लिए तैयार इस ओवर में। अगली बार इस बार अच्छी गेंद बैक पर जाकर के मिडिल स्टंप पे आती हुई गेंद अपने ही फॉलो थ्रो में फेंक किया। अच्छी गेंदबाजी, दो गेंदें दोनों ही डार्ट, लेकिन सम्मानजनक रूप से यहां पर थोड़ा सा समय लेना होगा इस गेंदबाज के विरुद्ध। अच्छी गेंदबाजी, और अब तक जो पैनापन दिखने वाला था वो शुरुआती क्षणों में दिखने को नहीं मिला। इस बार ऑफ स्टंप से बाहर जगह मिले और आने का इंतजार किया, निकाल दिया सीमा रेखा से बाहर। ये लगा जस्ट बुखारा चौका, और क्या बेहतरीन और लाजवाब टाइमिंग के साथ गैप का इस्तेमाल, गेंद सीमा रेखा से बाहर 84 पे पहुंचा दिया। 4.3 के बाद तजम्मुल बाबा के बल्ले से निकलता हुआ ये चौका। 34 से 14 पे आमिर अजीज संभवतः गेंदबाजी, जो कि पूर्व रणजी क्रिकेटर भी हैं। इस गेंद को निकाला उस और खिलाड़ी नासिर गनई ने गेंद को फील्ड किया, लेकिन दोनों बल्लेबाजों को रोक नहीं पाए। एक रन लेने से एक रन और खाते में जोड़ता हुआ 85 4.4 के बाद मुदस्सिर गुल हमारे साथ बने हुए हैं, और निश्चित तौर पे इस समय आदिल गुलडान, क्रिकेट जगत का डान, इस समय बीच मैदान में मुकाबला करता। इस बार रिसीव के अंदाज में खेलने की कोशिश, वसीम काचरूबी चौके, और गेंद निकल गई सीमा रेखा से बाहर। एक और जस्ट बुखारा चौका आता हुआ, और इस समय चौकों और छक्कों की बरसात, साउथ की जान, दर्शकों की पहचान, और क्रिकेट के डान ने समय बीच मैदान में सबका अनुवाशित मान करते हुए क्या लाजवाब पारी बीच मैदान में खेल रहे हैं। 89 पे पहुंचा दिया 4.5 के बाद पुलवामा जिमखाना का कुल योग। 89 for none after 4.5. Oh, that run!
Oh, that surprised everyone. Surprising element, but all beaten up again. And that goes back past the wicketkeeper for 4. And another boundary coming, but bowler can't believe. Then unlucky and fired on. It's 93 for none. It is Adil Guldan on to 37 and Tajammul Baba on to 35 of just 15 balls. And 16 balls were used by Adil Guldan to get to that magical figure of 37 under his belt. In the meantime, we'll have to wait and watch how things will unfold in the next passage of play. 5 overs done, first quarter of 5 overs coming to an end. It's been all about Pulwama Gymkhana. It's been the highlights. They are setting the ball, they are setting things on fire and going all guns blazing. Wonderful batsmanship and making the ball fly to all nooks and corners of the ground. It's been all about Pulwama Gymkhana and Tajammul Baba and Adil Guldan. Over number 6 we are going to be in last over the mandatory power play. And look at the players of Sultan Warriors. They're unable to understand how to dent to the confidence, how to keep the batters under check and how to tighten the nose. But the two batters, they're taking full toll of each and every good and bad ball. But in between improvising, that's also unsettling Sultan Warriors. Here goes Nasir Ganai again to Tajammul Baba. Chance. Who's wanting this one? Who's wanting? And the first blood is drawn. What a take. Unbelievable go ball. Nasir Kumar, you beauty. And there goes Tajammul Baba. The first blood is drawn, brought to you by Just Bukhara. And finally Nazir, Sultan Warriors Baramulla getting rid of the opening partnership. They were taking them to the cleaners. All of a sudden, some respite, celebration for Sultan Warriors Baramulla in over number 6. Credit goes to Nasir Ganai by picking up the wicket of Tajammul Baba. हाँ बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत और कहीं ना कहीं सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला की टीम गिरे हुए खड़े राहत की सांस ली होगी। तजम्मुल बाबा हालांकि बढ़िया स्ट्रोक खेलने के चक्कर में गेंद टॉप पेज पे लगी, हवा में उठी और जिस प्रकार से कैच लपका। हालांकि पहले प्रयास में गेंद हाथ से छूटी थी नासिर कुमार के, लेकिन दूसरे प्रयास में लाजवाब अंतरराष्ट्रीय सर की याद दिलाते हुए और पहला झटका तजम्मुल बाबा को किया। चलता 93 पे 1.5 के बाद नासिर गनई को मिलने वाली यह सफलता और एक सफलता मिलने के बाद नई ऊर्जा और उत्साह के साथ गेंदबाजी करनी होगी, सटीक लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी करनी होगी। लेकिन दूसरी ओर अगर पुलवामा जिमखाना की बात करें, एक स्टेज सेट हुआ है मनोवर, शुरुआत एक ठोस विश्वसनीय आधारशिला मिल चुकी है और आदिल गुलडान अभी भी बीच मैदान में बने हुए हैं, तो निश्चित तौर पे कांटे की टक्कर। हालांकि अगर विपक्षी टीम की बात करें, नासिर गनई, इशनाक, सुल्तान, जहांगीर लोन की बात करें और नासिर कुमार भी इस मुकाबले में खेल रहे हैं, ज़हूर जोलो, आदिल ऋषि, एक से बढ़कर वसीम काचरू, एक से बढ़कर एक का बल्लेबाज है, तो कहीं ना कहीं एक कांटे की टक्कर का मुकाबला बीच मैदान में देखने को मिलेगा। हालांकि पहली पारी पावर प्ले का आखिरी ओवर निर्धारित 6 ओवर जो पावर प्ले फील्ड रिस्ट्रिक्शन है वो इसके बाद समाप्त हो जाएगी। 5.193 पे एक पुलवामा जिमखाना की टीम टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते शबीर लेफ्टी, एक और दिग्गज बल्लेबाज पुलवामा की ओर से बीच मैदान में पहुंच चुके हैं, बातचीत करते हुए वहां पर आदिल गुलडान के साथ और देखना है किस प्रकार से वे यहां से बल्लेबाजी करेंगे। हालांकि निश्चित तौर पे थोड़ी सा यहां पे परिवर्तन करना होगा अपनी गेंदबाजी में, फील्ड में थोड़ा सा परिवर्तन करते हुए जहांगीर लोन लगातार बातचीत करते हैं नासिर गनई से कि किस प्रकार से गेंदबाजी करनी है। एक विकेट जरूर मिल चुकी है और एक दबाव बनाने की स्थिति में है, अगर आप यहां से एक और विकेट चटका लेते हैं तो निश्चित तौर पे इस मुकाबले में वापसी हो सकती है। फिलहाल 93 पे एक नासिर गनई चले, शबीर लेफ्टी के लिए राइट आर्म ओवर द विकेट, ये गेंद अच्छी गेंद इस बार ऑफ स्टंप पर आते हुए बैक पर जाकर के पंजों के बल उछलते हुए गेंद को रोका जरूर, निचले सिरे पे लगने के बाद वही पास में लुढ़की फील्ड किया बगैर किसी रन के। 93 5.2 के बाद शबीर लेफ्टी शून्य एक गेंद का सामना किया। आदिल गुलडान 37 16 गेंदों से इस समय नाबाद है नाटसा के छोर पे। बहुत ही बेहतरीन तरीके से अभी तक बल्लेबाजी हुई है। हालांकि तजम्मुल बाबा आउट होकर पवेलियन लौट चुके हैं, हमारे साथ शेख साहिल बने हुए हैं शहबाज नजीर के साथ। नासिर की गेंद इस बार कदमों का इस्तेमाल, वो गेंद सीमा रेखा से बाहर, ये लगा जस्ट बुखारा छक्का, अंपायर का निर्णय आता हुआ और शबीर लेफ्टी ने मात्र दूसरी गेंद का सामना किया, गेंद को पहुंचा दिया सीमा रेखा से बाहर गजब के फॉर्म में और इस समय बेहतरीन तरीके से 99 पे पहुंचा दिया एक विकेट के नुकसान पर। 5.3 के बाद एक विस्फोटक है, दूसरा विस्फोटक करीब पे पहुंच चुका है, करे तो क्या करे, किस छोर पे किस टप्पे पे गेंदबाजी करे, ये नासिर गनई भी समझ नहीं पा रहे हैं। Well, going a dynamite on very first ball, just taps half a step out of the crease and sends it packing over long off for 6, and now
Nasir Bali is under the pump, and he is under the serious pump at this crucial juncture. Thank you, Jafar Kazmi, Tanha, and others. It is 99. One share of Team 100 is Pulwama Gymkhana. They need single run to get to that triple figure mark. Oh, good shot! What a shot! Excellent! Beauty and gorgeous of the back foot. Shabir Lapti, you beauty! What a man with the bat! And that goes like a traceability into the backcourt. A point fans for 4. 100 comes up. 103 for the loss of 1. It is in wow. It is sheer balance. It's class of the backcourt from Shabir Lapti. हाँ जी बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। गैप का बेहतरीन इस्तेमाल। शबीर लप्टी के खाते में 4 और कुल योग 103 1 विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद को मार के जगह मिले, हल्के हाथों से निकाला, लेकिन उस और खिलाड़ी है तैनात था सबब ज़हूर सोलो। उन्होंने गेंद को फील्ड तो कर लिया, लेकिन दोनों बल्लेबाजों को रोक नहीं पाए। 1 रन लेने से 104 1 विकेट के नुकसान पर 5.5 के बाद शबीर लप्टी 11 4 गेंदों से और आदिल गुलडान 37 16 गेंदों से सामना करने के लिए तैयार। नासिर गनई का अब तक के सफल गेंदबाज। एक सफलता जरूर मिली है, मात्र एक सफलता अभी तक हाथ लगी है सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला की टीम को। मुदस्सिर खुल हमारे साथ, सकलैन हमीद भट्ट भी जैदू के साथ, वानी आकिब और सकलैन हमीद भी हमारे साथ बने हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अपना प्यार और विचार देने के लिए। नासिर गनई चले इस छोर से राइट आर्म ओवर द विकेट गुलडान के लिए, और बाहर लेग स्टंप पर आते हुए गेंद को बाबलिया रन लेना चाहते थे, काफी आगे निकल चुके थे शबीर लेफ्टी, लेकिन जैसे ही देखा गेंद सीधे वहां पर फील्डर के हाथ में, सुरक्षित अपने कदम क्रीज में। दर्शकों का शोर और मैदान के चारों ओर जहां पर भी नजर दौड़ाई जाए, खचाखच स्टेडियम भरा हुआ दर्शकों से। क्रिकेट के समर्थक, दीवाने, प्रेमी इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं, और इधर जेके स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से सभी चाहते व्यूअर्स लगातार अपना प्यार और विचार देते हुए इस मुकाबले का आनंद लेते हुए निश्चित तौर पे आजाद स्टेडियम क्रू इस समय गूंजता हुआ, और मैदान में इस समय रनों की बरसात होती हुई। एक और परिवर्तन, जहांगीर लॉन 17 नंबर की जर्सी पहने हुए गेंदबाजी के मोर्चे पे, तो देखना है वे किस प्रकार से गेंदबाजी करेंगे। शबीर लेफ्टी होंगे उनके सामने। पावर प्ले समाप्त। पावर प्ले में 104 रन बने 1 विकेट के नुकसान पर। क्या बेहतरीन प्रयोग किया, और ऐसा कहना चाहिए कि आज ताबड़तोड़ बल्लेबाजी देखने को मिली। आदिल गुलडान और तजम्मुल बाबा आउट होकर पवेलियन लौट चुके हैं, लेकिन बीच मैदान में शबीर लप्टी पहुंच चुके हैं। केआर स्पोर्ट्स बहुत बहुत धन्यवाद। सोहेल और शेख साहिल भी हमारे साथ बने हुए हैं। शोभू के साथ जहांगीर लॉन पहली गेंद लेकर के इस बार जगह मिली, ऑफिस अंपायर आने का इंतजार किया, निकाला उसको सीधे खिलाड़ी के पास। उन्होंने गेंद को फील्ड किया, रन बनने की किसी भी संभावना को समाप्त किया। जहांगीर लॉन 7वें ओवर के रूप में इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं। एक गेंद डॉट गेंद सामने है शबीर लेफ्टी। इस बार अच्छी गेंद ऑफ स्टंपर, फिर खेलना चाहते थे लेकिन सफलता नहीं मिली। और जहांगीर लोन की अगर गेंदबाजी की बात करें, अच्छी खासी मिश्रण अपनी गेंदों में करते हुए निश्चित तौर पे एक चतुराई भरी गेंदबाजी। और इस बार गेंद को उठाया, हवाई रास्ता दिया उस और खिलाड़ी, और जस्ट मौका विकेट। दूसरे सफलता मिलते हुए जहांगीर लोन को जैसे ही परिवर्तन के तौर पर लेकर के आए, परिवर्तन लाया रंग, और दूसरे खिलाड़ी को किया चलता। शबीर लेफ्टी निराशाजनक का प्रदर्शन करने के बाद निराश कदमों के साथ पवेलियन लौटते हुए, और 6.2 के बाद 104 पे दूसरा विकेट पुलवामा जिमखाना का। Finally, respite for Sultan Warriors Nazir, and now Jahangir Lone is among the wickets and getting rid of the danger man. And it was Shabir Lapti who just walked in and was trying to accelerate each and every ball, but on that occasion getting overcautious, and that ball blowing up in the air straight down to the throat of Adil Dada, and Dada does well just few inches inside the boundary, holding his nail and holding on to the ball. Nice go ball and nice catch on that occasion. It's wicket number 2 falling at the score of 104. Nazir, from here on they should try to reset their innings again. They should try to stitch a partnership at least, because you are right on top at the moment. You have already runs on the board after just 6.3 balls. We are down into the match, and Nazir, you can understand that you have 8 wickets in hand. Now should try to stick to the basics, rotate strike, and you are still on course for 250, which is possible from here, and which should be a catwalk from here on. It should be easy for the batting side, and if they manage to get there, then we should give credit to them, and if they fail to get there, then they have to blame themselves, because they still need to groom up quite a lot. They need to enhance themselves with the new tactics and techniques to deal with the certain circumstances. Here at Azad Stadium Crew, 104 for 2. We are going to be in over number. We are in over number 7. Jack goes again and goes to the newcomer. Newcomer was just trying to play it onto the onside. It is Avasha and beaten on that occasion. The ball hits him on the body, and now the two cricketers from North Kashmir are up against here at the center. And thank you, Khan Altaf and Sport. We'll have to wait and watch how Avasha will apply himself. Oh, chance! Who's wanting this one? Is it going to be Dada to
complete the catch. Oh, it's put down. Can you believe? Can you believe? Overthrows. But that there won't be any worry. But he has put down a dolly, a poacher, a gapper of a catch. Juicy one put down, and Jack can't believe when unlucky on that occasion. But blessing in disguise for the bat is still unbeaten out in the middle. जाकिर लोन नाखुश है इस प्रयास से, हालांकि आदिल दादा के द्वारा वह गेंद छोटी थी, एक जीवनदान, एक रन पूरा किया अगली गेंद पर, ओवर पूरा हुआ और निश्चित तौर पे यहाँ पर प्रशंसा करनी होगी, दाद देनी होगी जाकिर लोन की, जिस प्रकार से उन्होंने अपनी गति में परिवर्तन किया, विविधता लाई और जिसके चलते बल्लेबाज को ज्यादा मौका नहीं दिया। अगर इस कैच को लपक लेते तो निश्चित तौर पर परिस्थितियां कुछ और होती। गुल मोहम्मद हमारे साथ बने हुए, बहुत बहुत धन्यवाद गुल मोहम्मद साहब अपना प्यार और विचार देने के लिए। मुदस्सिर गुल, नेक्सिस यासूब और यासीन भी हमारे साथ बने हुए हैं। तो निश्चित तौर पे हमारे पास थोड़ा सा समय है मनवर इस ओवर पे टिप्पणी करने का, जिस प्रकार से लगातार बेहतरीन निःशुल्क प्रदर्शन हो रहा था, लगातार विस्फोटक बल्लेबाजी हो रही थी। ऐसे में जहांगीर लोन ने एक सफलता जरूर ली, हालांकि दूसरी विकेट भी मिल सकती थी यहाँ पर अगर दादा द्वारा वो कैच ना छूटा गया होता। तो निश्चित तौर पर क्रिकेट का ये एक अंक है, इस प्रकार के अतिरिक्त जोखिम उठाने पड़ते हैं। निश्चित तौर पर इन परिस्थितियों में क्षेत्र रक्षण कमाल का करना होगा यदि पुलवामा जिमखाना की टीम को एक न्यूनतम स्कोर तक रोकना है। एजाज हमारे साथ बने हुए हैं और यासूब साथ उमर असद मीर भी इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं। 7 ओवर पूरे 106, पुलवामा जिमखाना का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर। गुलडान 38-18 पे और अवेश शाह 1-2 पे सामना करने के लिए तैयार है। और की शुरुआत पहले गेंद गेंदूरों सर सीमा रेखा से बाहर, ये लगा जस्ट मुखाना छक्का, अंपायर का निर्णय आता हुआ और एडी आदिल्ला हमारे साथ बने हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इस छक्के के साथ ही 112 रन 2 विकेट के नुकसान पर। और दर्शक इस समय, दर्शक के नारों से इस समय स्टेडियम गूंजता हुआ, हर गेंद पे आनंद लेते हुए। और तमाशाइयों की अगर बात करें, दर्शकों की बात करें, बहुत ही बेहतरीन तरीके से सुबह से ही ये मैदान खचा खचा तमाशाइयों से भरा हुआ एक आकर्षक मुकाबला। 2 विकेट जरूर मिले हैं तजम्मुल बाबा और शबीर लेफ्टी के रूप में सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला की टीम को। एक बार फिर इस ओवर में अगली बार बाएं हाथ से ये गेंद डॉन के लिए, इस बार अच्छी गेंद लेग स्टंप पर आती हुई हल्के हाथों से खेला, जरूर रन लेना चाहते थे नादसा की छोर से ओवेश शाह, मना किया गुलडान ने, वापस सुरक्षित अपने कदम करीब में खींचे बगैर किसी रन के। 7.2 के बाद 112 रन 2 विकेट के नुकसान पर आदिल गुलडान 44 पे सामना करने के लिए तैयार गेंदबाज का ये गेंद। और इस बार फिर क्रॉस द लाइन, क्या खूबसूरत गेंद सीमा रेखा से बाहर, ये एक और जस्ट मुखाना। और इस समय लगातार गुलडान जो है वो इस समय बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए आग उगल रहे हैं और इस छक्के के साथ ही उनका अर्धशतक पूरा, बल्ला हवा में लहराया, दर्शकों ने मार रखा दाद दे। और क्या बेहतरीन बल्लेबाजी, 7.3 ओवर की गेंदबाजी, 118 रन पुलवामा जिमखाना 2 विकेट के नुकसान पर। तजम्मुल बाबा और शबीर लेफ्टी आउट होकर पवेलियन लौट चुके हैं। जरगर इमरान हमारे साथ बने हुए हैं, डार इशू के साथ एजाज और सलीम जाफर भी हमारे साथ बने हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सकलैन भी इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं। शबीर लेफ्टी आउट होकर पवेलियन लौट चुके हैं। इस ओवर में अगली बार 118 2 विकेट के नुकसान पर। इस बार धीमी गति की गेंद ऑफ स्टंप से बाहर लपेटने की कोशिश, सफलता नहीं मिली, बाकी का काम पूरा किया वसीम काचरू ने। 118 पे 2 मनवर लगातार इस समय परिवर्तन गेंदबाजी में कर रहे हैं गेंदबाज, लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिली है। आमिर अजीज है संभवतः गेंदबाज और अब तक 17 रन दे चुके हैं। 1.4 ओवर में कोई सफलता नहीं मिली है। एक बार फिर लेग स्टंप पर धीमी गति की गेंद, विकेट कीपर चौके, गेंद जाएगी सीमा रेखा की ओर। खिलाड़ी को काफी लंबी दौड़ लगानी पड़ रही है, जब तक वे गेंद तक पहुंचते तब तक का दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन और खाते में बटोर लिए। गुलडान के बल्ले से 2 रन और 52 उनका व्यक्तिगत योग, 23 गेंदों से कुल योग 120 2 विकेट के नुकसान पर। 7.5 एक गेंद का आना बाकी, मात्र 8वां ओवर प्रगति पर और अब कल्पना कर सकते हैं 120 रन स्कोरबोर्ड पे लग चुके हैं। दर्शकों का शोर हर गेंद के साथ इस समय गूंजता हुआ। आमिर अजीज इस ओवर में अगली बार, इस बार ऑप्शन से बाहर जगह मिली, हवाई रास्ता, गेंद सीमा रेखा से बाहर और शतरक्षण वहां पर बने, दर्शक गेंद गई सीमा रेखा से बाहर, ये लगा जस्ट मुखाना। और इस छक्के के साथ ही ओवर के समाप्ति, 8 ओवर समाप्त, 126 2 विकेट के नुकसान पर। आदिल गुलडान 58 24 गेंदों से, ओवेश शाह 1-2 गेंदों से और 8 ओवर में 126 2 विकेट के नुकसान पर। कल्पना कर सकते हैं और निश्चित तौर पर अगर इन्हीं परिस्थितियों में इसी प्रकार से बल्लेबाजी होती है तो करीब 300 का लक्ष्य भी छू सकती है टीम।
It's interesting. 126 for the loss of 2 after 8 overs, 12 overs to go. 72 legitimate balls are going to come, but this has been absolute carnage. Wonderful batsmanship. All the proper cricketing strokes were played by the two batters. They're displaying the tremendous character. Some extraordinary shots. And is this going to be a catch? No, it doesn't. Just Bukhara 6 number. First up this over, to be precise. We're into the 9th over. The first ball flies over long off, and Philip jumping on that occasion. But Nasir Bali unable to make a catch and unable to make to it, and ball flies and eluded him down to the boundary. 132 for 2 in over number 9. Ball 1 yielding a 6. Second ball. Shaw, chance. Who's wanting? Nasir Kumar. Nasir Kumar, no! Another 6 brought to by just Bukhara. 2 and 2. Back-to-back sixes. 138. And that man was put down by Adil Dadan to the offside on that occasion. Now he's taking full toll of Jahangir Longs over here. 138 for 2. And Shah is into the double figures now. Had that catch been plucked from thin air, and that drop catch is proving its worth now. It is costly a drop. Is this going to be a wicket? Is this going to be a wicket? No, it doesn't. Not unable to make it to it again. And ball falling short of him at long on area. And not tried his level best. But another catch. And it was a half chance to be precise. But Shah need to take care of his wicket. The way he's playing down the wrong line, he's unable to make any sort of contact time and again. And he's going after each and every ball. This is insensible cricket. You should try to stick to the basics and try to rotate the strike in between. Oh, that's a good shot, straight down the ground. There is a fielder, and before it's being fielded by Nasir Bali, at that portion of long on, the two batters had ample time in the world to settle for yet another single. 141 for 2 in over number 9. Jahangir Lon to go Shah again, and Shah standing tall. Call is for 1, and straight away his colleague responded in style, and a Guldan says, yeah, I'm gonna make it. It's 141 for 2. Last ball remains to be bowled, and it's going to be Jack to send in that delivery, and on strike will be Adil Guldan. He's on to 59, and he can bring up his 100 today. And somebody writes in, absolutely, it is juicy. It is something special. It's mouth-watering game underway here at the centre. 141 for 2. And Guldan stands tall again. But and you can see that roar from Guldan. And he's making oohs and ahs like noise from his mouth, and exercising his lips, but can't beat the fielder. And fielder doesn't permit him to settle for a single. Overcomes 10 and 9 done. 141 for the loss of 2. And look at that projected score. It tells us, oh, it's unbelievable. Can you believe what's going on? It's really been unbelievable scenes with the bat today, unleashing the terror with the bat. And it is shelling going on, and Sultan Warriors, they're looking shocked out in the middle. What to do, how to get the wickets here at this crucial juncture, how to turn the tables. And now it's going to be Adil Rishi, another former Ranji star, is going to operate. Nazir, they are trying each and every bowler here. They're trying to make those things happen, but the things are not happening at this crucial juncture. And Adil Rishi is warming up a bit, and he's going to operate in over number 10. 9 overs, carnage, 141 for 2. And Tajammul Baba and Guldan set things ablaze, set things on track, and then others followed the track, and others tried to prosper and cash on, and all were able to succeed in style. And barring that batter, Shabir Apti was unable to make it into the double figures, and he was undone with that beauty. And the very first ball, and Shah wearing bat onto it. Not quite middled, but we'll get a single. 142 for 2 in over number 10. Ball 1 yielding a single. What's going to come out and your way on ball number 2? Let's find it out. आदिल रेशी परिवर्तन के तौर पर गेंदबाजी के मोर्चे पे बने हुए हैं. एक गेंद फेंक चुके हैं. 9.142 पे 2 पुलवामा जिमखाना. आदिल रेशी चले गुलडान के लिए. उनकी गेंद इस बार सीधे बल्ले से खेला जरूर, हालांकि तिरछा थोड़ा सा किया जरूर पल्ला. 1 रन पूरा कर रहे हैं दोनों बल्लेबाज. गुलडान के खाते में 1 रन और कुल योग 143 पे 2. 9.3 के बाद 2 विकेट के नुकसान पर आदिल गुलडान 60 पे नाबाद है. 27 गेंदों का सामना किया और ओवेस शाह सामना करने के लिए तैयार. आदिल रेशी का 143 पे 2 और बाहर अच्छी गेंद, हालांकि बल्ला जरूर चलाया.
विकेट कीपर वसीम काचरू चूके खुद जा रहे हैं गेंद उठाने के लिए, लेकिन तब तक का दोनों बल्लेबाजों के पास पर्याप्त समय था 1 रन बटोरने का। बाय का इशारा वहां पर अंपायर द्वारा, तो 1 रन और 144 पे जा पहुंचे हैं। खान अल्ताफ, बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी सूचना हम तक पहुंच चुकी है। अपना प्यार और विचार देने के लिए इसी प्रकार से अपना समर्थन सहयोग जेके स्पोर्ट्स टाइम को देते रहिए। प्रायोजक शाइनिंग स्टार पांपोर, एमएचएम आर्को फैन स्टेशन, रियल एस्टेट पांपोर, फैशन फिस्ता एंथम स्पोर्ट्स इंडिया। आदिल रेशी गुलडान के लिए, और इस बार गुलडान, क्या जबरदस्त गेंद स्टेडियम से बाहर, ये लगा जस्ट मुखारा छक्का, अंपायर का निर्णय आता हुआ, और इस छक्के के साथ ही 150 150 रन पूरे होते हैं मात्र 9.4 ओवर की गेंदबाजी के मैच। 10वां ओवर प्रगति पर 150 रन बना लिए हैं पुलवामा जिमखाना ने। ताबड़तोड़ आकर्षक और विस्फोटक बल्लेबाजी इस समय बीच मैदान में कहर बरसा रहे हैं गेंदबाजों पर। इस समय दोनों बल्लेबाज आदिल गुलडान और अवैस शाह, तजमुल फाफा और शबीर लेफ्टी, ये 2 मान्यता प्राप्त बल्लेबाज आउट होकर पवेलियन लौट गए। ऋषि की गेंद तिरछे बल्ले के साथ खूबसूरत स्ट्रोक, लेकिन पीछे खिलाड़ी जहूर जोलू संभलते हैं, उन्होंने गेंद को फील्ड किया, लेकिन 1 रन और खाते में जुड़ता हुआ 1 रन के साथ ही 151 पे जा पहुंचे हैं। 2 विकेट के नुकसान पर अवैस शाह 16 पे नाबाद 8 गेंदों से, आदिल गुलडान 67 29 गेंदों का सामना किया, और आदिल ऋषि अब तक 9 रन खर्च कर चुके हैं, 5 गेंदें भी फेंक चुके हैं। आखिरी गेंद लेकर के तैयार 10वें ओवर के सामने होंगे अवैस शाह। उनके लिए ये गेंद जगह मिले, खेला हवाई रास्ता, उस ओर कोई खिलाड़ी तैनात नहीं, और गेंद निकल गई विकेट कीपर के पीछे सीमा रेखा से बाहर। एक और जस्ट मुखारा चौका, ओवर समाप्त, 10 ओवर की समाप्ति, 155 पे 2, ये है लेखा जोखा। और ऐसे में मीर आसिफ हमारे साथ बने हुए हैं, यावर फयाज भी इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आमिर आमी भी अपना प्यार और विचार देने के लिए बने रहिए हमारे साथ, लाइक और शेयर करना ना बोले। डिजिटल स्टार के जरिए सेंड स्टार्स का बटन दबाकर हम तक पहुंच सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आभारी रहेगी पूरी जेके स्पोर्ट्स टाइम की कमेंट्री टीम। और इस समय वर्तमान स्थिति की बात करें मनवर, आधी पारी समाप्त हो चुकी है, 10 ओवर का खेल, 155 रन 2 विकेट के नुकसान पर। और कल्पना नहीं कर सकते थे कि सुल्तान वॉरियर्स जैसी दिग्गज टीम के विरुद्ध पुलवामा जिमखाना इस प्रकार से बल्लेबाजी करेगी। एडवोकेट हिलाल अहमद डार, जी हां, क्रिकेट जगत के एक और सितारे। अगर अंपायरिंग की दुनिया की बात करें तो एक जीता जागता चमकता नाम हमारे साथ बने हुए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारा मान बढ़ाने के लिए, हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए, और वो भी इस तहलका के इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं। बारामूला से फिलहाल 10 ओवर में 155 2 विकेट के नुकसान पर। Halfway down, it's 155 for 2, and Guldan is on fire. He's setting things ablaze, and this man, Carnage, and Guldan is the second name to Carnage, and he has announced himself today, and he is flowing with flourish. What an innings, enterprising, cameo, and he is trying to convert into this one into a substantial one. And thanks to Educate Hilal Dar, then Abu Usman, and Pare Farooq, then Umar Asad, and others. Thank you for your love and support, Dar Mudassir. But look at Pulwama Gymkhana. It's a live game. It isn't highlights, but you're witnessing highlights because each and every ball tends to fly in the air, and they're giving flight to each and every ball, and ball tends to leave the center like fly, taking off and making it a survey out to the center and depositing somewhere in the stands, not into the third tier, but we have seen balls flying into the orbit today. It's been Tajamul Baba, then followed up with Adil Guldan. Now Uwaisha joins the party in style. He's under 20 of 9 balls, and Adil Rishi bowled over number 10 of an innings, and conceding away 13 and all leaked runs and flurry of boundaries. It's raining 4s and 6s here at Azad Stadium, Khrew. For the first time, I think that this sort of inning has been displayed by a cricket team in the valley. For the first time, such kind of carnage that each and every ball, first 9 balls were sent on a trot out of the park. 6 boundaries of the very first over. Can you believe? 6 fours. And Educate Hilal writes in, whoever wins today, some records will be definitely broken. It looks like that already they are broken and they're created. It's a history in making today here at Azad Stadium, Khrew. And the Khrew people, the spectators who thronged into the center in numbers. We have got at least 2,000 to 3,000 people witnessing the match, physically available around the park. Thank you, Bills. It's 155 for 2, and they all would want that some records should be broken today, and records are created to be broken, and records are made to be broken. But today it's been different game of cricket, all guns blazing,
flyer of innings, and it's been all about Pulwama Gymkhana highlighted so far. And Guldan, he's on to 67 up 29 balls. Nazir, this man, each and every day for past couple of weeks we have been witnessing this man. Each and every day he performs. He is producing a gem of innings time and again. What is the reason behind his consistency, his brilliance, his excellence? जी बिल्कुल, बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस समय बल्लेबाजी हो रही है और लाजवाब प्रदर्शन आदिल गुल्टान और ओवेश शाह वर्तमान स्थिति में। और एक बार फिर एक और परिवर्तन आदिल दादा को लेकर के आए हैं। छठे सातवें गेंदबाज का प्रयोग किया जा रहा है। निश्चित तौर पर विकेट की आवश्यकता गुल्टान के लिए। पहले गेंद लेके सबसे बाहर और गेंद सीधे वहां पर सीमा रेखा से बाहर, अंपायर के इशारे की प्रतीक्षा। और निश्चित तौर पर ये 6 रनों का इशारा आता है। ये लगा जस्ट बुखारा छक्का। स्वागत किया आदिल दादा का पहली गेंद पर आदिल गुल्टान ने। 100 और निश्चित तौर पे 161 स्कोर बोर्ड पे दिखाई जा रहा है। वहां पर गिलिया भी खेल देती है स्टंप से बाहर। वसीम काचरो के हाथ में गेंद, मिस किया लाइन को और स्टंप्स भी खेल दिया, लेकिन सुरक्षित क्रीज में रनों की गति में कोई वृद्धि नहीं। 10.2, 161 पे 2। आदिल गुल्टान 73, 31 गेंदों से, ओवेश शाह 20, 9 गेंदों से और 11वां ओवर समय प्रगति पर। गुल मोहम्मद हमारे साथ बने हुए हैं। आदिल दादा परिवर्तन के तौर पर 11वां ओवर फेंकते। अगली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट। ये गेंद जगह मिली, इस बार ऑफ स्टंप से काफी बाहर, उछलती हुई गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्ताने में। वसीम काचरो बिल्कुल स्टंप से सदे हुए किसी भी संभावित कैच को लपकने के लिए। अरसलान अली हमारे साथ बने हुए हैं। और इस समय बीच मैदान में आजाद स्टेडियम की बात करें तो ऐसा मानो कि स्टार स्पोर्ट्स पे हाईलाइट जो है वो चल रही है। इसी प्रकार की बल्लेबाजी आज देखने को मिल रही है। एक और डॉट गेंद आदिल दादा की। गुल्टान बड़ा प्रहार कर रहे हैं, आदिल दादा के विरुद्ध भी वो प्रयास ले रहे हैं और ऐसे में अभी तक सफलता नहीं मिली। हालांकि एक छक्का जरूर अब तक लगाया है। अहमद शाकिर हमारे साथ बने हुए हैं से बहुत बहुत धन्यवाद, यावर खुर्शीद के साथ। और ऐसे में आदिल दादा तैयार होते हुए गेंदबाजी के मोर्चे पे सामना करने के लिए तैयार। गुल्टान 73 पे 33 गेंदों से 161। पुलवामा जिमखाना 2 विकेट के नुकसान पे। ऑप्शन से बाहर, नीचे गेंद, बल्ला चलाया, गेंद नीचे, बल्ला हवा में और बाकी का काम पूरा किया वसीम काचरो में। अच्छी गेंदबाजी, नपीतुली कसी हुई गेंदबाजी। समय आदिल दादा मुस्कुराते हुए निश्चित तौर पे प्रयास कर रहे हैं बड़ा स्ट्रोक लेने की, लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिली है आदिल गुल्टान को। 161 पे 2। दादा की गेंद ऑप्शन से बाहर आने का इंतजार, मिसफील्ड का नतीजा, गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। ये लगा जस्ट बुखारा चौका और इस चौके के साथ ही काफी लंबे समय से प्रतीक्षा में थे इस प्रकार के स्ट्रोक खेलने के। चक्कर में अंततः सफलता मिल गई आदिल गुल्टान को। उनका व्यक्तिगत योग पहुंचा 77, 35 गेंदों से। कुल योग पुलवामा जिमखाना 165, 2 विकेट के नुकसान पर 11 ओवर पूरे हो चुके हैं और 10 रन इस ओवर से खर्चे आदिल दादा ने। और निश्चित तौर पे एक बेहतरीन मुकाबला बीच मैदान में। अगर विपक्षी टीम की बात करें, सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला, जहांगीर लोन, आदिल रेशी, ज़हूर जोलो, आदिल दादा, वसीम काचरो और नासिर कुमार, कहीं ना कहीं आमिर अजीज और उमर, कहीं ना कहीं एक दिग्गज खिलाड़ी नासिर बेली भी इस मुकाबले में खेल रहे हैं। तो 1 से 10 नंबर तक बल्लेबाजी है और ये मानसिक तौर पर जानते हैं पुलवामा जिमखाना की सभी खिलाड़ी। और ऐसे में इस प्रकार के अतिरिक्त जोखिम ले रहे हैं। और गेंदबाजी की अगर बात करें, जहांगीर लोन ने अच्छी गेंदबाजी की है। हालांकि एक का कैच उनकी गेंदबाजी पे छूटा था, लेकिन निश्चित तौर पर कहना चाहिए बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी उन्होंने की है। 11 ओवर 165। नए ओवर की शुरुआत, आमिर अजीज पहली गेंद ऑफ स्टंप से काफी बाहर और वाइड का इशारा अंपायर द्वारा। एक अतिरिक्त के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 166, 2 विकेट के नुकसान पर। यह 12वां ओवर प्रगति पर है। साजिद गुल हमारे साथ बने हुए हैं। शारिक भी इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं। जावेद खांडे हमारे साथ बने हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जावेद भाई, अपना प्यार और विचार देने के लिए। लाइक और शेयर करना ना भूलें। डिजिटल स्टार के जरिए सम्मानित। इस बार एक और खूबसूरत स्ट्रोक, ये लगा जस्ट बुखारा छक्का, अंपायर का निर्णय आता हुआ। और जैसे ही आमिर अजीज की गेंद ऑफ स्टंप से थोड़ी सी बाहर मिली और उस पे क्या कड़ा प्रहार किया वहां पर ओवेश शाह ने। 6 रन और खर्चे और इससे 6 रन के साथ ही वे पहुंच गए 26 पे। कुल योग 172 पे 2। आमिर इस बार फिर ऑप्शन से बाहर खेलना चाहते थे, हालांकि ठीक तरीके से गेंद को बल्ले पे ले नहीं पाए। सटीक थ्रो, स्टंप्स पे नहीं लगा, बैकअप कर रहे थे खिलाड़ी नासिर गनाई, उन्होंने गेंद को फील्ड किया, लेकिन दोनों बल्लेबाजों के पास पर्याप्त तो समय था 1 रन लेने का और 1 रन के साथ ही 173 पे जा पहुंचा। 2 विकेट के नुकसान पर मात्र 11.2। 12वां ओवर प्रगति पर आदिल गुल्टान ने एक बार फिर स्ट्राइक लेने की तैयारी। 77 पे नवाद, 35 गेंदों से ओवेश शाह, 27, 11 गेंदों से लोन यूनिस हमारे साथ बने हुए। इस समय गूंजता हुआ स्टेडियम दर्शकों द्वारा। इस बार ऑप्शन से बाहर तिरछा बल्ले के साथ उसको खेला जरूर उस और नासिर कुमार थे, उन्होंने गेंद को फील्ड किया, लेकिन रन बनने की किसी भी संभावना को समाप्त किया।
स्कोर अभी भी 173 पे 2, 77-36 गेंदों से गुलटान। तौसीफ मंजूर भट्ट, बहुत बहुत धन्यवाद तौसीफ भाई अपना प्यारा विचार देने के लिए। इस बार धीमी गति की गेंद, बाप लिया हवाई रास्ता और नो मैंस लैंड में 3 खिलाड़ी उस और नासिर गनाई ने उठाया, थ्रो किया गेंदबाज के पास, पर्याप्त समय था, 1 रन। और हालांकि स्ट्रोक पे ताकत नहीं दे पाए, अपने स्ट्रोक से खुश नहीं है गुलटान, लेकिन 1 रन जरूर मिल गया। 174 पे 2, 11.4 के बाद वानी रियाज, अर्शिद भट्ट और खान अल्ताफ भी हमारे साथ बने हुए हैं। धन्यवाद सभी व्यूअर्स का। आप सेंड स्टार्स के बटन को दबाना ना भूलिएगा ताकि आप डिजिटल स्टार के जरिए हमें सम्मानित कर सके। आमिर की गेंद, इस बार अच्छी गेंद, अंदरूनी सिरा, विकेट कीपर अभी नहीं रोक पाए, पीछे खिलाड़ी जा रहे हैं, गेंद जा रही है सीमा रेखा की ओर। जब तक उसको सीमा रेखा की 1-2 कदम अंदर रोक लेते तब तक पर्याप्त समय था दोनों बल्लेबाजों के पास रन बटोरने का। और रनों के साथ स्कोर 177 पे जा पहुंचा। 11.5 ओवर की गेंदबाजी, आखिरी गेंद का आना बाकी। आमिर अजीज अब तक 2.5 ओवर में 37 रन खर्च कर चुके हैं, लेकिन सफलता उनके खाते में नहीं आई है। बशारत बशीर, मुश्ताक अहमद भी हमारे साथ बने हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद मुश्ताक भाई अपना प्यार और विचार देने के लिए। डार इजाज हमारे साथ बने हुए हैं। गुलडान के लिए आमिर अजीज ओवर की आखिरी गेंद लेकर के, और बार कड़ा प्रहार, पीछे खिलाड़ी, गेंद सीमा रेखा से बाहर। एक और जस्ट बुखारा, जहांगीर लौटने ने प्रयास किया था, लेकिन गेंद गोली की रफ्तार से सीमा रेखा से बाहर। एक और चौका, ओवर पूरा हुआ, 12 ओवर समाप्त, 181 पे 2। आदिल गुलडान 82, 38 गेंदों से, ओवेशा 30, 12 गेंदों से, और आमिर अजीज 3 ओवर का कोटा कर चुके हैं। हालांकि अभी भी उनका 1 ओवर आना बाकी है, 41 रन खर्चे हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद रेहान महराज, बशारत अरसलान अली, बशारत हसन, लकी एम सजाद भी हमारे साथ बने हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। जितनी भी प्रशंसा करें अपने दर्शकों की उतनी कम, निश्चित तौर पर हमारे साथ बने हुए हैं। और एक आकर्षक मुकाबला बीच मैदान में चलता हुआ, तो स्थिति मनोवर 12 ओवर पूरे हो चुके हैं, 181 पे 2। आदिल गुलडान जो कि इस समय बीच मैदान में आग उगल रहे हैं, नाबाद है 82 पे मात्र 18 रन। दूर खान राजा डोडा जम्मू से, और इसके बाद बात करेंगे, अगली गेंद को निकाला सीधे खिलाड़ी के पास, वहां पर नाग थे, लेकिन नाग ने इस बार आग उगलते हुए बल्लेबाज ओवेश शाह का कैच लपक लिया और कहा भैया चलिए आपका समय हुआ पूरा। 30वां विकेट मिलता हुआ 181 पे 3। और क्रिकेट जगत की एक और खूबसूरत मधुर आवाज, खान राजा, शायद क्रिकेट जगत में कौन उनको बुला सकता है, वो हमारे साथ बने हुए। बहुत बहुत धन्यवाद खान भाई अपना प्यार और विचार देने के लिए। जेके स्पोर्ट्स एम आपका स्वागत कर रहा है आजाद स्टेडियम ख्रू से। स्थिति 12.1, 181 पुलवामा जिमखाना राहत की सांस लेते हुए सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला की टीम। Of course, and it's salvation respite. And it was a spicy, and somebody dropped in a comment that it was a spicy good afternoon and it was a spicy lunch, and they served them as per Sultan Warriors are concerned. Fayaz Rasool, Tosif and Sahil and Sayyid Hilal, and each and every viewer is dear to us. It's 181 for 3 after 12-point delivery. That polo wicket brought to you by Just Bukhara. A 181 for 3. Our proud sponsors behind live broadcast, Anthem Sports India Fashion Fiesta, Shining Star Pampur, and MHM multi-brand fashion store, Agri Clan Magam. 181 for 3 after 12-point ball. We are in over number 13. 181. They're on course for a big score, but some respite. All of a sudden getting rid of another one. Newman walks to the Sunday. Saqib Nazir, the very first ball. It is through the back cut, a point. Just Bukhara 4, and standing tall, wearing bat on it, cutting batsman, and Nasir Kumar putting in dive, full length dive, but all in run, and efforts in run, and Adil Dada conceding a boundary because of the failure. 185. And now Saqib Nazir is off the mark in style, is on to 4, second ball, distant agricultural shot, and it goes straight to the failure there at mid-wicket area. Just a run, Mir Hassan is watching, thank you so for your love and support, and it's your love which we need, time and again. 186 for 3, now new man on strike, no it is Guldan, what a shot, extra cover drive, will this speed the failure? No, Dawson, is he going to go back for the second? Yeah, he wanted, but sensibly sent back, and he agreed, and deciding to settle for just a run. 187 for 3, over number 13. We are in Fazan, Lok Star Irfan, Mir Hassan, and Junaid Butt in goes again, and Saqib Nazir, another timing
perfect shot, but straight to fielder there at extra cover. Just a run Zulu the fielder. Score moves on to 188 for the loss of 3. मनवर यहाँ पर देखिए साकिब नजीर बहुत ही बेहतरीन तरीके से जानते हैं कि आदिल गुलडान की निगाहें जम चुकी है, वो बेहतरीन तरीके से गेंद को मार रहे हैं और ऐसे स्ट्राइक उनको दे दी। इस बार अगली गेंद अच्छी गेंद ऑफ स्टंप पर प्रहार किया डॉन ने, लेकिन सफलता नहीं मिली। गेंद छक्का थी, विकेट कीपर वसीम का चौके दस्ताने में बगैर किसी रन के, रनों की गति में कोई वृद्धि नहीं। 13 ओवर पूरे 188 पे 3। पुलवामा जिमखाना, तजम्मुल बाबा, ओवैस शाह और एक और बल्लेबाज जो इस समय बीच मैदान में आउट होकर पवेलियन लौट चुके हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। शबीर लेफ्टी, क्षमा कीजिएगा, 3 बल्लेबाज शबीर लेफ्टी, तजम्मुल बाबा और ओवैसा, ये 3 बल्लेबाज आउट होकर पवेलियन लौट चुके हैं। नाबाद बल्लेबाज साकिब नजीर अभी अभी पहुंचे हैं और ऐसे में गुलडान नाबाद है। तो अगर साकिब नजीर की बात करें, एक और दिग्गज खिलाड़ी ऑलराउंडर है अगर पुलवामा जिमखाना की बात करें, लेकिन इन परिस्थिति में बेहतरीन तरीके से समर्थन करना होगा आदिल गुलडान को। अगर गेंदबाजी की बात करें तो ऐसे में एक विकेट की आवश्यकता है और ऐसे में अगर एक विकेट और चटका लेते हैं तो कहीं ना कहीं एक बड़े रक्त का रोक सकते हैं। फिलहाल 188 स्कोरबोर्ड पर लग चुके हैं, 7 ओवर का आना भी बाकी। सकलेर हमीद भट्ट, नसीर लोंडार, इजाज मुर्तजा भी हमारे साथ बने हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी व्यूअर्स का अपना प्यार और विचार देने के लिए। लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि अन्य लोग इस संघर्षपूर्ण निर्णायक रोमांचक स्थिति, कांटे की टक्कर, क्रिकेट का महासंग्राम, क्रिकेट का महायुद्ध आजाद स्टेडियम में बीच मैदान में चलता हुआ। पहली गेंद करारा स्ट्रोक, वहां पर साकिब नजीर का डराया धमकाया वहां पर गेंदबाज ने और बाकी का काम पूरा किया। वहां पर खुद अपने फॉलो थ्रू में फील्ड करके गेंद को रन बनने की किसी भी समानों को समाप्त किया। 14वां ओवर प्रगति पर एक गेंद हो चुकी है, 188 पे 3। साकिब नजीर 6 पे नवाज 4 गेंदों से। गुलडान नानसा के छोर पे 83, मात्र 17 रन दूर अपने शतक से। ये गेंद और बाप सबसे बाहर, हालांकि ताकत नहीं दे पाए स्ट्रोक में, लेकिन गेंद जाएगी सीमा रेखा की और अब सीमा रेखा से बाहर। एक और जस्ट बुखारा चौका आता हुआ इस बार साकिब नजीर के बल्ले से और उनका व्यक्तिगत योग दोहरे अंकों में पहुंचता हुआ। 5 गेंदों से 10, 200 का स्ट्राइक रेट, 192 पे 3, 13.2 के बाद जावेद परे हमारे साथ बने हुए हैं। वालेकुम अस्सलाम जावेद भाई, अपना प्यार और विचार देने के लिए। नाइक नजीर, मोहम्मद इकबाल सोफी भी इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं और गेंदबाजी का दायित्व इस समय फैसल डार के पास। फैसल सामने वाले छोर से साकिब नजीर के लिए राइट आर्म ओवर द विकेट, करारा स्ट्रोक, ओ गेंद सीमा रेखा से बाहर, अंपायर का इशारा और जस्ट बुखारा आता हुआ। एक और छक्का, इस समय छक्कों और चौकों के बसात 198, 13.3 के बाद सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला के गेंदबाज सोचते होंगे एक विस्फोट गया, दूसरा विस्फोट इस समय बीच मैदान में विस्फोटक बल्लेबाजी करता हुआ। अगली गेंद बॉलर के सर के ऊपर से, जी नहीं, गेंद सीमा रेखा से बाहर। 200 रन पूरे, जस्ट बुखारा चौका आता हुआ और मनवर हो क्या रहा है कल्पना भी नहीं कर पा रहे क्रिकेट के समर्थक। Unbelievable scenes, and who can believe this? This is something special, and this is just like highlights of an innings coming up below viewers' way. But this has been the live game, and third on the trot. Will this carry down to the field? No, Dawson. A couple of bounces and fielder fumbles and sloppy field, lackadaisical approach, and allowing the batters to face the second run, which wasn't available in fact. And now it's 204 after 13.5 balls. With 6 overs remaining, 200 is already onto the board. It's 204 for 3. And last ball, Sajjad goes and bows to Sakiब Nazir, way outside off. And he gets away with it over Capstan, and 14 done. It's 204 for the loss of 3. Now the question is that Sultan Warriors Baramulla, having a packed up side, a nice crew of young buddies, talented all-rounders, unable to put any sort of pressure on the batting side. They're unable to give them some testing time. Irrespective of that, they have been taken to the cleaners, and they haven't shown any application with the ball. And now it's the question that how Sultan Warriors Baramulla can be called as a bunch and a pack of stars, and they need to understand, they need to ruffle their feathers and produce some beauties out of nowhere and try to bowl in the righties. Yeah, sometimes good balls can be sent packing, but you need to produce some beauties. Try to stick to the basics and bowl to your field and keep things tight in between and try to field up to the mark. And their fielding has been below par today, and fielding has not been up to the mark. They dropped few catches, and it's because of that those drop catches are also costing them the match here, and they're costing them heavily at the moment.
जी बिल्कुल, चर्चा जारी रखेंगे, टिप्पणी जरूर करेंगे मुकाबले में। फिलहाल दादा वहां पर अपने कदम चौके वापस बॉलिंग मार्क पे आते हुए और दर्शकों का शोर गूंजता हुआ जी के स्पोर्ट्स टाइम के मैच से आप तक पहुंचता हुआ एक संघर्षपूर्ण मुकाबला। साकिब नजीर है सामने दादा के, दादा की गेंद हवाई रास्ता, लेकिन खिलाड़ी पीछे नाग। जब तक उनके पास गेंद पहुंचती तब तक पर्याप्त समय था साकिब नजीर और आदिल गुलडान के पास अपने छोड़ बदलने का। 1 रन और 206 पे 3, 14.2 के बाद 15वां ओवर पारी का चलता हुआ आदिल दादा के पास गेंदबाजी और सामने है आदिल गुलडान। रन के लिए ये गेंद इस बार तिरछे बल्ले के साथ कलाइयों के सारे मोड़ा, वहां पर खिलाड़ी थे उनसे गेंद रोकी नहीं, बैकअप कर रहे थे। नासिर गनाई ने गेंद को फील्ड किया, लगभग जब तक सीमा रेखा की छेद से फील्ड करके थ्रो करते आदिल दादा के पास गेंद पहुंचती, लेकिन तब तक दोनों खिलाड़ी अपने अपने स्थान पर सुरक्षित पहुंच चुके थे। 1 रन और 208 पे 3, 14.3 के बाद गुलडान 86, 42 गेंदों से, साकिब नजीर 23, 10 गेंदों से और आदिल दादा गेंदबाजी के मोर्चे पे। एक सफलता जरूर मिली है इस बार, ऑफ स्टंप से आते हुए गेंद को घुमाया, 2 खिलाड़ियों के बीच में से गेंद सीमा रेखा से बाहर। एक और जस्मखाना चौका आता हुआ और इस चौके के साथ ही गुलडान का कुल योग 90 पे जा पहुंचा। मात्र 43 गेंदों से पुलवामा जिमखाना 212 पे 3, 14.5 के बाद। क्या लाजवाब आकर्षक पारी, 10 रन दूर अपने शतक से है आदिल गुलडान इस बार ऑफ स्टंप से बाहर। कड़ा प्रहार, सफलता नहीं, गेंद सीधे विकेटकीपर वसीम काचरू के दस्ताने में। यहाँ पर खुर्शीद डार मुख्तार अहमद भी हमारे साथ बने हुए हैं, इनू भी इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं बडगाम से। दादा है गेंदबाज, इस बार फिर पिछली गेंद की पुनरावृत्ति, चलाया बल्ला लेकिन फिर सफलता नहीं मिली, फिर गेंद वसीम काचरू के दस्ताने में और निश्चित तौर पे ओवर पूरा हुआ। 15 ओवर समाप्त, 212 पे 3, 44 गेंदों से 90 आदिल गुलडान, 10 गेंदों से 23 साकिब नजीर। और ऐसे में अगर आदिल दादा की बात करें, 3 ओवर कोई मेडन नहीं, 1 सफलता, 25 रन। और अगर यहाँ पर बात करें पुलवामा जिमखाना की बल्लेबाजी की मनवर, थोड़ा सा हमारे पास पर्याप्त समय है और विकेट गिरने के बाद भी जिस प्रकार से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि एक दबाव की स्थिति जरूर होगी, थोड़ा सा संयम लेना होगा, थोड़ा सा समय लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ प्रतीत हुआ नहीं पुलवामा जिमखाना के। एक विकेट गया, उसके बाद जिस प्रकार से नए बल्लेबाज ने ताबड़तोड़, और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि शायद ड्रेसिंग रूम से सेट होकर के बल्लेबाज आए हैं। No, they have only one thing in their mind: just go out and explore and just try to announce yourself and just try to flow with flourish and just go up to the bowlers and try to unsettle them. And this is their plan today, and this is working so far. It has worked so phenomenally. It has worked today for their side, and whosoever walked in and going for runs, and each and everyone trying to go for kill. It's 212 on the board for the loss of 3 after 15-pointer ball. When somebody writes in what is agricultural shot, which is in the proper cricketing stroke in terms of the terminology of cricket, and that's called agricultural approach. 212 for 3. Over number 16 goes again. Oh, look at that one! There it is, onto the rooftop, just Bukhara number next. To be precise, we don't know the number of sixes. And how many times ball has been belted for 6 out of the centre. Another 6, 218 for 3 in over number 16. But that was proper cricketing stroke, and it just shuffling across and pulling that one with authority and over the mid wicket for 6. Next ball in the air. Who's wanting this one? Is it going to be a catch? Yes, it does. Nicely held by Ahmed Aziz. Wicket number 4, and this is Saqib Nazir. He has to depart, and it is the latest departure for this man, and not early exit to be precise. 29 already to him of 12 balls. 13 ball 29. Another cameo coming to an end. Far again. It's 118 for 3 in over number 16. Now Nazir, they try to propel and prosper. They're just trying to advance to 250s, then beyond that they're dreaming about that. It's a dream kind of a start. It's a dream game underway here at the centre. Who would have thought that Pulwama Gymkhana will win the toss and straight away they will start all guns blazing innings. Out of nowhere they're taking the leap out of Sultan Warriors book. Bowlers are unable to understand how to keep them under check, how to dent to the confidence, how to put brakes on the scoring rate. Whosoever comes in, whosoever walked in so far, and thus far to be precise, all are going for kill. And this is the positive intent. It worked at Nazir, it can work on a given day. It is your day and you are coming out flying colours, flamboyant start, and this has been fantabulous innings. हाँ बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत। और चौथा विकेट गिरने के बाद नए बल्लेबाज क्रीज पर आ चुके हैं उमर। इससे पूर्व गेंदबाजी कर चुके हैं आदिल गुलडान। 90 पे 45 गेंदों से गुलजार अहमद नए बल्लेबाज पहुंच चुके हैं स्थान लेने के लिए, और गुली गुलजार के नाम से। और देखना है
गुलजार गुली, क्षमा कीजिएगा। और देखना है किस प्रकार से वो यहाँ से बल्लेबाजी करेंगे। 15.3 218 पे 4 पारी का 16वां ओवर प्रगति पर गेंदबाजी उमर के पास। उमर राइट आर्म ओवर द विकेट गुलजार के लिए, राइट आर्म पहली गेंद गुलजार के लिए, इस बार अच्छी गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, पहली गेंद पर प्रहार करने की कोशिश गुलजार द्वारा सफलता नहीं मिली और गेंद छकाते हुए सीधे विकेट कीपर वसीम काचू स्टंप से काफी दूर। अच्छी खासी रफ्तार है वहां पर उमर के पास और ऐसे में बेहतरीन प्रयोग कर रहे हैं, रफ्तार का बेहतरीन इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन एक सटीक लाइन और लाइन के साथ गेंदबाजी करनी होगी। मुजम्मिल डार हमारे साथ बने हुए, आसिम बशीर इस मुकाबले में नहीं खेल रहे हैं, आकिब मीर आज इस मुकाबले में नहीं खेल रहे हैं, लेकिन अगर बात करें इस मुकाबले की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी उनके विरुद्ध भी यहां पर देखने को मिल रही है। अगली गेंद को निकाला, पीछे खिलाड़ी है, उन्होंने गेंद को फील्ड किया, हालांकि सफाई के साथ गेंद को कलेक्ट कर लिया, थ्रो किया वसीम काचरू के पास, 1 रन और 219 15.5 4 विकेट के नुकसान पर। और आदिल गुलडान 90 पे नाबाद 45 गेंदों से 10 रन दूर अपने शतक से। देखना है आज वे शतक ये पारी यहां पर खेलते हैं, क्या शतक पूरा कर पाते हैं। एक बेहतरीन निःशुल्क ठोस लाजवाब प्रदर्शन जबकि टीम को आवश्यकता थी। आखिरी गेंद लेकर के तैयार उमर, गुलडान के लिए कदमों का इस्तेमाल आप सबसे बाहर, खूबसूरत स्ट्रोक और गेंद सीमा रेखा से बाहर, ये लगा जस्ट बुखारा छक्का, अंपायर का इशारा। और 16 ओवर की समाप्ति के बाद 225 पे 4, गुलडान 46 गेंदों से 96, मात्र एक चौके से दूर अपनी इस शतक की पारी से। मुश्ताक अहमद वालेकुम अस्सलाम। और जी हाँ बिल्कुल, इस समय अगर बारामुल्ला सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला की बात करें, पूरी तरह से अस्त व्यवस्थ करके रखा है उनकी गेंदबाजी को, उनके क्षेत्र रक्षण को, समझ नहीं पा रहे हैं कि किस प्रकार से वे यहां से गेंदबाजी करें। हालांकि उनके पास धाकड़ बल्लेबाजी में है, 1 से 10 नंबर तक उनके पास बल्लेबाजी, लेकिन जिन परिस्थितियों में आज बेहतरीन प्रदर्शन किया है, क्या लाजवाब आकर्षक बल्लेबाजी आज देखने को मिली है पुलवामा जिमखाना की ओर से। नासिर गनाई को एक बार फिर अपने दूसरे स्पेल में बुला लिया गया है कप्तान द्वारा। पारी का 17वां ओवर लेकर 16 ओवर 225 पे 4, गुलजार अहमद सामना करने के लिए। पहली गेंद इस बार अच्छी गेंद, आवश्यकता के गलियारे में फेंकी हुई, बमुश्किल जड़ से खोज कर निकाला और 1 रन और। अच्छी गेंद इस बार, और इस प्रकार की गेंदों की आवश्यकता है यहां पर सुल्तान वॉरियर्स के गेंदबाजों द्वारा, और अगर उसमें सक्षम हो पाते हैं, हालांकि क्षमता रखते हैं नासिर गनाई, लेकिन इन परिस्थितियों में प्रयोग करना होगा यॉर्कर्स का। इन ओवर्स में अगर आप इस प्रकार की गेंदबाजी करते हैं तो निश्चित तौर पे एक लाभ आपको मिल सकता है। 226 पे 4 16.1, पुलवामा जिमखाना टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करता हुआ। लोन बसारत, अरफात जरकर, शेख नदीम वालेकुम अस्सलाम, हमारे साथ परवेज सूफी भी इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं डार उम्मीद के साथ। नासिर गनाई चले 226 पे 4, सामने है गुलडान 96 पे। बहुत ही खूबसूरत गेंद, विकेट कीपर चौके, अंदरूनी सिरा, विकेट कीपर खुद जा रहे हैं, जब तक वसीम काचरू गेंद को फील्ड करके थ्रो करते बैकअप कर रहे थे नासिर गनाई। प्रशंसा की सभी दर्शकों ने, और क्या तालमेल का परिचय देते हुए तेज दौड़ विकेट के बीच में 2 रन और खाते में जुड़ते हुए, और 2 रनों के साथ ही 228 पे 4, और आदिल गुलडान 98 पे नाबाद, मात्र 2 रन दूर अपने शतक से। और यहां दर्शकों से खचा खच आजाद स्टेडियम ख्रू बना हुआ। ख्रू प्रीमियर लीग वर्ष 2022 शानदार सफल प्रतियोगिता, और ऐसे में 2 भिड़ंता इस समय बीच मैदान में कांटे की टक्कर 2 टीमों के विरुद्ध होती हुई। इस बार अच्छी गेंद, फिर आवश्यकता के गलियारे में ऑफ स्टंप पर फेंकी हुई, कमाल की गेंदबाजी नासिर गनाई। और इस प्रकार की गेंदबाजी की आवश्यकता है जब आप इन स्लॉग ओवर्स में करते हैं, निश्चित तौर पर दर्शकों का शोर गूंजता हुआ। 228 पे 4 16.33 गेंदें बची हैं। मीर प्रोविजनल स्टोर हमारे साथ बने हुए हैं, फैजू बाबू भी इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं, नाइक नजीर हमारे साथ कोकरनाग से, अरफात जरकर लगातार इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं। 98 पे नाबाद गुलडान सामना करने के लिए नासिर गनाई का, यह गेंद फुल टॉस लगे स्टंप पर, लेकिन पूरी तरह से स्ट्रोक का ले नहीं पाया। हालांकि 1 रन पूरा कर रहे हैं गुलडान, 1 रन और उनका व्यक्तिगत योग 99, कुल योग 229, 4 विकेट के नुकसान पर। आखिरी गेंद समझते अभी भी आने बाकी। कुरतुल ऐन हमारे साथ बने हुए हैं, और गुलडान शेख नदीम। Have you seen this man bowling in the dat? And this is how to bowl under certain circumstances. All the toe crashers bowled in this, and this is what they needed, and this is what they were lacking in overs that were sent down prior to this one. He's hitting the deck hard, he's keeping things tight, and he's bowling into that arc and toe crushers, and into the body arc again a Yorker length delivery, toe crusher Yorker, and just digs it out onto the onside. Nazir, this is what for the first time I have seen any bowler from SWB Sultan Warriors
Warriors Baramulla, showing application, how to apply himself and how to adapt himself under certain circumstances when the ball was under the serious pump and they're taken to the cleaner seat, producing 5 toe crashes on the trot. It's quite some achievement. हाँ बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ और आप जा करके जिस प्रकार की आवश्यकता थी गेंदबाजी की सटीक लाइन और लाइन के साथ यॉर्कर, कटर, ओवर्स और अब जा करके देखने को मिली है प्रयास हर गेंद का मिश्रण जरूर किया है गति में परिवर्तन करके नासिर गनई ने, जिसके चलते इस ओवर में अभी तक का बेहतरीन गेंदबाजी होती है। आदिल गुलडान 99 पे बाद 49 गेंदों का सामना, नासिर गनई चले, ये गेंद निकाला हवाई रास्ता, गेंद सीमा रेखा से बाहर, गुलडान का शतक और क्या बेहतरीन आश्वासन लेते हुए दर्शक खड़े होकर के उनको इस पारी की जो है आश्वासन देते हुए और निश्चित तौर पे प्रशंसा करनी होगी गुलडान की। और ऐसे में आप देख सकते हैं सजदा करते हुए, क्या कमाल का वातावरण और ऐसे में विजुअल्स जेके स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से आज तक पहुंचते हुए आकर्षक। It's been excellent innings today, and what a man Adil Guldan with the bat, and he brings up his 100 in style, but credit goes to Nasir Bali in that over. He bowled some terrific deliveries. He produced 6 Yorkers, and that 6th ball that was little tad fuller fly on the trot where toe crashes, but Adil Guldan, the man with the bat, he's on to 103 in style, brought up his 100. What a style, and he circled that round of applause, huge roar, huge roar from the crowd, and they were enchanting Guldan, Guldan, the dawn of Azad Stadium. Oh, first ball just Bukhara number just Bukhara, and that one flies over backwards, collect for 6, and that 6 brought to you by Just Bukhara. And these are the visuals, these are the unbelievable scenes unfolding here at the center of Azad Stadium, Crew. Can you believe, Nazir? One man is at the non-striker stand, another one joins the party. It is Guli Gulzar pulling that turn to perfection. What a shot, 240 for 4 in over number 18. Ball number 2 goes, and those swing and a miss, chance of a run out. It's going to be run out, and Guli Gulzar has to walk back. Wicket number 5 is down, but look at Adil Guldan. He is eagerly waiting to keep the strike, and again he sold his opponent down the river, but he's back onto the strike. He wants to keep the strike, and he wants to take the full toll of each and every ball, and now he wants to propel the total in excess of 260, 270, and that's going to be an uphill task, and it's going to be a mammoth to chase down and a mountain to climb for Sultan Warriors Baramulla in inning number 2. खूबसूरत वातावरण, आकर्षक मुकाबला, आजाद स्टेडियम गूंजता हुआ और डॉन का बल्ला बोलता हुआ। यह है क्रिकेट की खूबसूरती। 240 पे 5, 17.2 के बाद उमर एक सफलता लेकर के 38 रन दिए हैं 30 ओवर अपने कोटे का फेंकते हुए। आदिल गुलडान 103 पे बाद 50 गेंदों से। अरशद मकबूल, आशु मुश्तबा अली और आशु खन्ना भी हमारे साथ बने हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी सूचना क्या है? इससे पूर्व हमारी शायद नजर उस पर नहीं पड़ी, बहुत जल्द आप तक पहुंचाना चाहेंगे। और नासिर अहमद रातर भी इस मुकाबले का आनंद लेते हैं प्रवेश सोफी के साथ। आमिर चले डॉन के लिए, ऑपरेशन का डंडा बाहर और इस बार डॉन वापस चले। आदिल गुलडान आउट होकर साफ बोल्ड हुए वहां पर। निश्चित तौर पे ये 6वां विकेट, लेकिन एक आकर्षक, विश्वसनीय और ताबड़तोड़ बेहतरीन बल्लेबाजी और आउट होकर पवेलियन लौटते हुए दर्शक और उनकी पूरी टीम में समय उनके मान में खड़े होकर उनको मान देती हुई, क्योंकि आज उन्होंने मान सम्मान अपनी टीम का रखा। साउथ की जान आदिल गुलडान सम्मान, और इस समय सम्मान के साथ वापस ड्रेसिंग रूम में पहुंचते हुए। Standing ovation for this man, and it means quite a lot. Each and everyone is on their toes to welcome the Don. He's walking back to the pavilion. But what an innings, enterprising, and that was beautiful innings, and what an innings, curved innings, and he played all the brilliant shots on either side of the track, even behind the wicketkeeper. That's called the long stop and the straight hit area, and all areas were maneuved, and he was milking the bowlers to perfection. What a man with the bat, golden arm, and he displayed a thumping punch and the blown, and he blown away the bowling of Sultan Warriors. And for a while I thought that and Sultan Warriors will blown away Pulwama Gymkhana, but it was the batters
who displayed that carnage kind of a style today, and they blown their bowlers away and they were taken to the cleaners. It was clean hitting, it wasn't pinch hitting. Some of the batters walked in between to chipped in with those big hits, those pinch hits, but this was a complete package in terms of an inning. He's quite a batsman. 240 for 6 in over number 18. 3 legitimate balls are gonna come to finish things off in style. 240 for 6. Now the question is, beloved viewers, you can also drop your comments, and what will be the final score after 3 balls? And that turn wrapped him on the thigh pad. The 2 batters are escaping for a quick single. Indian made it, and with that single, score moves on to 241 for the loss of 6 wickets in over number 18. 2 balls remaining. Your comments, and you can also contribute to JK Sports Time and its live broadcasting team by sending in your digital token and coupon of love, and we are going to be indebted and thankful to you guys time and again. Shell-shocked Sultan Warriors Baramulla, drooping shoulders, but now they've got a job to do with the bat, because they need in excess of 240. With 2 balls to come, we'll have to wait and watch where Pulwama Gymkhana will stop their innings, and where they will halt, where the innings is going to come to the halt. It's 241 for 6, and he has to rebuild and he has to reload again. He missed it, the run up again, and he has to go back to the top of his bowling mark, but the pressure is mounting, Nazir. हाँ बिल्कुल, इस समय 241 पे 6। धन्यवाद शब्बीर, जो कि शब्बीर साहब डीपीएल बडगाम से हमारे साथ बने हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अपना प्यार और विचार देने के लिए। इमरान नजीर, पीर इशफाक, शारिक अहमद, सुजैन लोन भी इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं। उमर सामने वाले चोट से चले, यासर के लिए इस बार बड़ा प्रहार करने की कोशिश, हालांकि 1 रन पूरा कर रहे हैं दोनों बल्लेबाज। निश्चित तौर पर 1 रन मिलेगा। 1 रन के साथ ही 242 पे 6, 17.5 ओवर की गेंदबाजी के बाद मलिक यासर 1 पे 1 गेंद से, और वहीं पे उमर गुल 1 पे नाबाद 1 गेंद से, और उमर इस समय गेंदबाजी के मोर्चे पे 40 रन खर्च कर चुके हैं। 2 सफलता है, 2.5। तीसरा ओवर अपने कोटे का फेंकते हुए, और कुल मिलाकर पारी का 18वां ओवर, उसके तुरंत बाद 2 ओवर का खिलाना बाकी है। साहिल मीर हमारे साथ बने हुए हैं। यावर तांत्रे इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं। बशारत हसन हमारे साथ बने हुए सलीम भट्ट के साथ भी। भट्ट तजम्मुल इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं। पारी का 18वां ओवर, आखिरी गेंद लेकर के तैयार उमर। सामने हो गए उमर गुल, 1 पे नाबाद 1 गेंद का सामना किया है। लोन फैजान और करामत जुबरान भी इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं, रेहान और आसिफ राजा के साथ। ये गेंद इस बार फिर ऑफ स्टंप से बाहर, फिर बल्ला चलाया वसीम काचरो के हाथ में। गेंद वहीं पर रन लेना चाहते थे, काफी आगे निकल आए थे नॉन स्ट्राइकिंग शॉट से, और ओवर समाप्त। तो इस प्रकार से 18 ओवर की पारी, निश्चित तौर पे ये 18 ओवर की पारी थी। 18 ओवर समाप्त, 242 पे 6, और निर्धारित 18 ओवर में 243 रन बनाने हैं सुल्तान वॉरियर्स बारामूला की टीम को। ये जानकारी देते हुए मैं शेख नजीर, साथ ही कमेंटेटर मुनव्वर तनवीर के साथ आपको वापस जेके स्पोर्ट्स टाइम के स्टूडियो ले चलता हूं, इस उम्मीद के साथ कि जैसे ही दूसरी पारी शुरू होगी हम आपकी सेवा में उपस्थित रहेंगे। तब तक का अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।